Good morning, all of you. I, David Singh from EduSoft, welcome you all in this session. Let us first of all start with the agenda of this small session is to guide you on how you should prepare for the exam of this information technology, code 402. In this 1 hour, it is impossible to teach you the concepts. So I will give you guidance how to prepare and how to be confident when you go for the exam and what you would require to gain better marks in the exam. When we talk about multiple choice questions, the mode is completely different from descriptive question paper. अगर ये question paper descriptive होता तब आपको prepare करने में ज्यादा दिक्कत आती because तब आपको सब कुछ सारा कुछ डिटेल में short answer type क्या होंगे, long answer type क्या होंगे, multiple choice क्या होंगे, fill in the blank होंगे, ये सारा कुछ तरीके से prepare करना पड़ता. अभी क्या है? One advantage is that you have to just give multiple choice question where options are given and you have to select the correct answer. There is no negative marking also. So this is one thing which is of comfort, जो आपके लिए एक आराम है कि चलिए मुझे MCQ देना है, डिटेल में आंसर नहीं लिखना है. But there is another side of it. In MCQ, to crack any MCQ paper, your concepts have to be very clear. Now, when I talk about concepts, there are two things in computers. अगर आप कोई भी टेक्निकल सब्जेक्ट उठा के देखें, जैसे हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, there are two aspects. One is the concept. What is this? What is that? Fine. And why is this? Why is that? What is the significance of X? What is the significance of Y? What is the importance of this? What is the importance of that? So what and why? For example, what is a style? In MS Word or in any word processor, you might have learned through MS Office or you might have learned through OpenOffice, does not matter. When we talk about what is a style, that's a very general question that applies to all the software, MS Word or OpenOffice Writer. Second aspect is why. What is the significance of styles, for example? So these two things, mostly the questions will come on concept. The other part is the practical part, the how part. How will you do this? How will you do that? Write the steps to do this. What are the correct steps to do that? That will be very less, maybe 1 or 2%. You might find 1 or 2 questions about it, but mostly the questions will be based on concept, because CBSE knows that some of the questions, some of the students have learned through MS Office, many students have learned through OpenOffice. So they cannot ask a software specific question. They will always ask the thing which is common in both or which is conceptual. Like I told you, they will ask the question related with style, for example. I give you an example of a question on styles, like what style actually is. Let's understand first. Style is something, the text formatting, the coloring, the font, and the appearance we change about the text. That is called style. And there are predefined styles in the software. We can apply those styles also, or we can create our own style and then we can save that style in the software. It is both way around. You can pick up the style which is already available, or you create a new style and you add it to the library of the software so that you can use that style later on also. And you save your time in formatting the text again. So that is how styles work. Now, what is a style? If you are asked about, so this is the changing the appearance of the text, color, size, font. When we change these things of the text, we are actually changing the style. Second question is, what is the significance? What is the advantage of styles? One advantage is saving of time and effort. If I have typed a letter and I want to quickly format it, I will pick up certain styles which are already there. I will apply those styles and it will save my time. I don't have to hunt into the options and menu, where is bold, whether to keep it 14 size or 18 size will look good,
or which font will look good. There are already designed styles are there, and I can pick them up. That is easy, quick, and time saving. So this is what style is. Now, what is the significance? Significance is this. Suppose I have created a project report of 100 pages and I have 20 chapters in it, 20 headings. I want all those headings to be of same type. Now I cannot go applying 20 times. So I can apply style on the whole document. I can apply same style consistently across the chapters of the project report. So that will save me time, a lot of time. Otherwise, applying same style in 100-page document is very time consuming. And once styles are applied, creating the table of content, index of the book, creating the table of content becomes also easier, because table of content actually looks for the styled headlines and it takes those headings into it with the page numbers. So that is the advantage. Advantage is consistent look can be given to the document by the help of styles. Second advantage is table of content can be created very easily. Third advantage is our effort and time is saved. So I have just given you one example. So for example, a question comes that Ravi has created a 100-page book with 10 chapters and he wants to give the same consistent look to all the chapters. What should he do? What is more suitable for him? Now options are given: A, template; B, styles; C, format painter; D, any of these. The correct answer is styles. So if your concept is clear, you will be able to answer all these questions. So there will be no detailed questions. You don't have to write paragraphs. You don't have to write short answer type. There is only multiple choice question, MCQ. So concept has to be clear. MCQs can only be cracked when your concept is clear. You might not be able to do the things in lab, or you may not have found time for practice. So CBSE will be going to ask mostly concept based questions. So go for that. Fine. I share my screen. Okay, somebody is asking in this question, which I given the example, why not any of these? Any of these, why not? Because now again the concept has to be clear. What is a template? Template is something which is an entire document style. Entire document is styled. You pick that template and you fill in your content in it. Fine, that is good. But if you have created, that is, you are creating that document right from the template. But suppose you have a document which you have typed already. It is not based on any template. And to that you want to give a consistent style. Then styling you have to go. You cannot apply, you cannot go for templates, because templates have a fixed structure. The document you have typed may have a different structure. In 99% cases that would happen. So template is something you have to decide very first. Generally, you pick up a template and modify it. But if you have typed the document already, or somebody has given you the document typed already, for that you should go for style. Format painter, the other option, format painter is meant for local styling, like you pick up the style of some text and apply it to other text. Now doing it using format painter, an entire 100-page document will again take a lot of time. So look at the advantage and look at the viability, look at the relevance of the option. Which out of these is most relevant, most suitable? The question is asking which is the most suitable. So applying styles is most suitable because the document has already been typed. Now, another question, for example, Suman has created a report and she has formatted the report very well. Now she wants that to create other reports, the same reports she could be able to use to create other reports in future. Now see the catch here. She has already formatted the reports very well. She wants to use this report formatting for other reports in future. What should she do? The correct answer is she should
save this as a template. तो सुमन ने रिपोर्ट बना ली, उसकी फॉर्मेटिंग भी करी हुई है, उसने उसको सेव कर लिया डॉक एक्स या डॉक्यूमेंट फाइल की तरह, फिर उसने उसको टेम्पलेट की तरह भी सेव कर लिया। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जब वो एक नई रिपोर्ट बनाएगी तो वो या तो इस टेम्पलेट को उस पर अप्लाई कर देगी या इस टेम्पलेट को उठा के मॉडिफाई कर लेगी। तो templates are created so that you can pick and use and to apply on entire document, and styles are used to give consistent formatting to your document. Got it? एडवांटेज दोनों के सेम है, एडवांटेज दोनों के कॉमन है कि वो टाइम बचाते हैं, हमारा एफर्ट बचाते हैं. दिस इज द एडवांटेज. फाइन. सो दिस इज हाउ यू लुक एट द कॉन्सेप्ट एंड द एडवांटेज ऑफ द कॉन्सेप्ट. अगर आपने ये 2 लाइन पे प्रिपेयर कर लिया तो आपका 90% पेपर आपका क्रैक है. फाइन. I'll just share the screen. So now till this discussion, how much any question comes to your mind, you can unmute yourself and ask. Now after this much discussion, something must be coming across your mind. Anything if you need to ask, you can ask me. I give you 30 seconds to ask your question, then I'll move on. Sir, generally we don't find many practice papers for information technology. Okay, so what we will do is, what I will do is after this session, what you can do is, if you have any email ID, you please type that email ID in the chat. I will take out those email IDs and I will mail you all, and I will mail ma'am also, so that you can take it from the teacher also. All a whole set of MCQs. I think if you are able to solve those MCQs, those will be enough to crack the paper. Fine. So don't worry at all. This session is to guide you, and you prepare, of course. Those papers you please solve all the questions, that will help you. Fine. So I will be sending you a whole set of question papers, and one thing more I will show you. After this session, you can go there and you can practice. I'll just share my screen for a moment. Now this is, you see here, this is your playground.edusoft.co.in, playground.edusoft.co.in. I just gave it to you in the chat. Let me put this URL. Don't go to this URL right now. You can do that later on. I'll just show you where you should go. On this home page, you can go for free courses. In free courses, when you go, here you will see term 1 QPs 402. Some of you might have come here. If you don't know, this is one way. There you will find 10th Information Technology Code 402, paper 1, paper 2. These two. You can go there, and here you will find 25 question papers here. It is completely free. No need to register and everything. You just access it and you use this quiz. 25 questions are there. No limit for the attempts. You can attempt as many times, and you practice here. Similarly, if you go, you have 2 sets of papers. So 50 questions are here. You prepare these 50 questions, plus I will send you more. Once you prepare this whole set of questions, that is enough. So that will enable you to crack the actual question paper. Got it? So need not to worry. A lot of help will come to your way. Then below this, okay, somebody has joined late and asking if there would be MCQ paper or subjective paper. I repeat again, your paper will be MCQ, multiple choice question paper. 25 marks. You will have to answer 25 questions. There will be a choice of questions like 7 out of 10 or 5 out of 7 or 8, like this choice would be there. But all in all, you have to answer 25 questions. Clear? So, well, let us move further.
Below this, you will find another class 10 402 practice questions. If you go here, you will find employability skills and subject specific skills 2 buttons. You can practice these questions also. Around 70 questions are there. 70 more questions are there. So 50 those, 70 these. How many of them now? Approximately a score of questions. 100, 120 questions are there, unit wise. And you practice them and you will be well prepared. Got this? So it is playground.edusoft.co.in. So after this session, you spend time here, you solve these questions. They will give you a lot of confidence and practice to crack the actual paper. And all of you, please mention your email ID, your correct email ID in the chat, so that I'm able to send you the questions through mail. Today evening, I will try that. I will do that by today evening. You will get the question paper, so it will be easy. You will have time to prepare also. So I'm stopping sharing the screen. After the session, you go to these two and you try out all the questions which are available here. Well, so I think this much would be of great help to you. Coming to, okay, let me share the screen again. I wanted to show you something else also. I share the screen again. And here we go. Now, these are the things which CBSE has added as the new curriculum change last year. So as I told you, you go for benefit, advantages of styles. How styles are different from templates. Styles templates से कैसे different होती हैं? This will definitely make for a question. Different types of styles आप एक बार देख लीजिए. बस इतना देख लीजिए कि कौन सी स्टाइल किस पे अप्लाई होती है. That's it. कैसे अप्लाई होती है, प्रैक्टिकल पार्ट आपने एक बार देख लिया. Even if you don't remember it, the specific questions for steps and all that will not come. So don't worry about the steps. Your concept has to be clear. कि स्टाइल क्या होती है, टेम्पलेट क्या होता है, दोनों में फर्क क्या होता है, दोनों का एडवांटेज क्या होता है. That's it. स्टाइल्स कितने तरह की होती हैं जनरली, ये आप इनके नाम एक बार आप अब इसके लिए आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा. पैराग्राफ, कैरेक्टर, लिंक, टेबल एंड बुलेट लिस्ट्स. So that way you have to remember. फॉर्मेट पेंटर का क्या यूज होता है? तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि राजू ने अपनी हेडिंग को फॉर्मेट किया हुआ है ब्लू कलर में, फॉन्ट साइज 20, और उसको यही स्टाइल बाकी 5 हेडिंग्स पर भी अप्लाई करनी है, तो उसको वो कैसे कर सकता है? तो उसमें अगर ऑप्शन होगा टेम्पलेट, इट इज यूजलेस. वो केवल 5 जगह अप्लाई करने के लिए टेम्पलेट की कोई जरूरत नहीं है, स्टाइल की भी कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज उसको अपनी बनाई हुई स्टाइल अप्लाई करनी है. तो अगर वो केवल 5 जगह भी कर रहा है तो पहले वो स्टाइल को सेव करे और उसके बाद वो अप्लाई करे. दैट इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस फॉर अ वेरी स्मॉल थिंग. तो द बेस्ट चॉइस इज क्विकली ही विल double click on format painter button and he will quickly click and apply those styles. So the correct answer here is format painter. Fine. So format painter का यूज है जब आपको quickly एक स्टाइल दूसरी जगह अप्लाई करनी हो, एक टेक्स्ट का स्टाइल दूसरी जगह, then format painter can be used. Now if I come to इमेजेस में देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से एक्शंस इमेजेस पे अप्लाई होते हैं. इमेजेस पे हम क्या कर सकते हैं? उनको रिसाइज कर सकते हैं, इमेजेस को हम क्रॉप कर सकते हैं, इमेजेस को हम रोटेट कर सकते हैं. ये 3 कॉमन ऑप्शंस हैं, रोटेट, क्रॉपिंग, रिसाइज. अब इसमें एक बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन से एक्शन के द्वारा इमेज का डायमेंशन चेंज हो सकते हैं. अब अगर ऑप्शन से क्रॉपिंग, अप्लाइंग फिल्टर, कॉपी पेस्टिंग एंड नन ऑफ दीज, तो आपका करेक्ट आंसर हुआ क्रॉपिंग.
क्योंकि क्रॉपिंग में इमेज का काफी सारा हिस्सा हट जाता है और इमेज छोटी हो सकती है। रीसाइजिंग का तो मतलब ही है साइज चेंज करना। फाइन, तो रीसाइजिंग में आप इमेज को बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। क्रॉपिंग में इमेज और छोटी हो जाएगी क्योंकि आप कुछ हिस्सा उसका हटाएंगे तो वो छोटी हो जाएगी। बाद में भले आप उसको रिसाइज करें, बट आफ्टर क्रॉपिंग इट विल बी डिक्रीजिंग इन साइज। सो दीज टू थिंग्स एक्चुअली चेंज द साइज ऑफ द इमेज। रोटेशन पे कोई ऐसा खास क्वेश्चन नहीं बनेगा, कोई ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन रोटेशन पे नहीं आ रहा है, तो यू कैन लीव दैट आउट। टेबल ऑफ कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल ऑफ कंटेंट पे आपका क्वेश्चन बन सकता है कि टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिकली बनाने के लिए क्या जरूरी है। अगेन स्टाइल्स हैव कम। आपको याद होगा स्टाइल्स का मैंने आपको एक एडवांटेज बताया था कि अगर स्टाइल्स आपने अप्लाई की हुई है हेडिंग्स पे और सब हेडिंग्स पे, तो टेबल ऑफ कंटेंट उनको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके एक ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट बन जाती है। सो टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए, ऑटोमेटिकली बनाने के लिए हमारी जो हेडिंग्स और सब हेडिंग्स हैं जिनको हमें उस टेबल ऑफ कंटेंट में इंक्लूड करना है, उनके ऊपर एक कंसिस्टेंट स्टाइल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास चैप्टर नंबर्स हैं, चैप्टर नंबर्स को मैंने एक स्टाइल दे दी हेडिंग 1, और मेरे पास सब टॉपिक्स हैं उनको मैंने स्टाइल दे दी हेडिंग 2। तो जैसे ही मैं ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट बनाऊंगा और उसमें 2 लेवल सेट करूंगा, हेडिंग 1 हेडिंग 2, तो वो ऑटोमेटिकली हेडिंग 1 और हेडिंग 2 के सारे टेक्स्ट को उठा के वहां पे दिखा देगी और उसके अगेंस्ट में पेज नंबर दिखा देगी। So to create a table of content, styles are necessary to be applied on the headings or subheadings which should come in the table of content. This is the core concept on which your question, if any question comes, that kind of question will definitely come. टेबल ऑफ कंटेंट आप कैसे बनाएंगे इस पर ज्यादा फोकस मत करिए, बट टेबल ऑफ कंटेंट क्या होती है, उसका क्या एडवांटेज है, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। वन मोर क्वेश्चन कैन कम कि क्या टेबल ऑफ कंटेंट में पेज नंबर के अलावा और कुछ भी ऐड कर सकते हैं? द आंसर इज चैप्टर नंबर्स, चैप्टर नेम्स। वी कैन ऑल्सो ऐड चैप्टर नेम्स अलॉन्ग विद पेज नंबर, दैट विल कम इन टेबल ऑफ कंटेंट। Another very pet, many questions, 2-3 questions might come on mail merge. Mail merge is a very common topic and questions will come on this. For example, the concept. How many of you really know the concept of this mail merge? Can you tell me in chat? How many of you are clear with the concept of mail merge? All of you? Theoretically, if you have not done it practically, don't worry. Theoretically, do you know what is mail merge and what is the advantage? So generally what happens is, suppose I have to send 50 letters out there in Delhi NCR to different people. Somebody is living in Gurgaon, Noida, Delhi, in another city maybe, and I have to send out these 50 letters to these 50 people. So what I have is, I have the addresses and names, etc., contact numbers, etc., of those people in a document, in a table. Maybe it could be a Word table, it could be an Excel worksheet, हो सकता है MS Access के डेटाबेस में किसी टेबल में हो या किसी डेटाबेस के अंदर हो, डज नॉट मैटर। तो जहां कहीं भी मेरा डेटा स्टोर्ड है, चाहे वो वर्ड की टेबल हो या एक्सेल हो या कोई डेटाबेस हो, दैट collection is called data source. The source of data from where I will pick up the fields and I will insert them into my actual letter, the main document. And once that insertion is done, तो मैंने सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशन को क्या बता दिया कि कौन सा डेटा किस जगह पर जाकर इंसर्ट होगा। एक बार ये पता लग गया तो जैसे ही मैं जनरेट मर्ज लेटर्स करूंगा, जितने रिकॉर्ड्स मर्ज होंगे उतने लेटर्स की कॉपीज अलग अलग बन जाएंगी, and then I can either mail them or take the print out or whatever. Fine. तो यहां पर आपके दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मेन डॉक्यूमेंट वो है जो
सेम है, कॉमन है सारे लोगों को जानने के लिए, द लेटर और द रिपोर्ट और एनीथिंग। डेटा सोर्स कंटेन्स द वेरिइंग वैल्यूज। वेरिइंग वैल्यूज क्या होंगी? पर्सन का नाम, पर्सन का एड्रेस, पर्सन का कॉन्टैक्ट नंबर, पर्सन का पिन कोड, सिटी, these are varying values and these are found in data source. अब इस प्रोसेस में जब हम मेन डॉक्यूमेंट में बताते हैं कि कौन सी वैल्यू कहाँ इंसर्ट होगी, नेम कहाँ पर आना चाहिए, पिन कोड कहाँ पर आना चाहिए, सिटी का नाम कहाँ पर आना चाहिए, अगर ये सारी चीजें हम अपने मेन डॉक्यूमेंट में मार्क कर रहे हैं, उसको मार्क करने का जो कंपोनेंट होता है उसका नाम है मर्ज्ड फील्ड। मर्ज्ड फील्ड, जहां पर भी मैं मर्ज्ड फील्ड मार्कअप करूंगा वहां पर वो डेटा इंसर्ट हो जाएगा। सपोज एक मर्ज फील्ड है फर्स्ट नेम, अगर मर्ज फील्ड फर्स्ट नेम को मैंने बिल्कुल टॉप में इंसर्ट किया हुआ है तो सारे फर्स्ट नेम वहीं पर जाकर दिखाई देंगे। और एक बार जैसे ही मैं जनरेट मर्ज लेटर्स करूंगा, अप्लाई मेल मर्ज करूंगा, जैसे ही मैं, वो सारा डेटा उन मर्ज फील्ड के को रिप्लेस कर देगा और उतने लेटर्स जनरेट कर देगा जितना की रिकॉर्ड्स हैं। गॉट दिस? तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। अब इसमें बड़े घुमाने वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो कि रवि ने एक डॉक्यूमेंट बनाया है और उसे वो डॉक्यूमेंट दो लोगों को भेजना है, दो लोगों को भेजना है, तो व्हाट इज द मोस्ट सूटेबल वे? और उसमें दिया होगा मेल मर्ज, ईमेल, he can create 2 copies, he can use save as to create 2 copies and send them. तो यही करेक्ट आंसर है, he can create 2 copies and send them। दो लोगों के लिए मेल मर्ज करने की जरूरत नहीं है। So it's actually you look at the advantage। एडवांटेज मेल मर्ज की क्या है, मेल मर्ज का रेलेवेंस क्या है? जब आपको बल्क मेल भेजनी है, 50 people, 25 people, even 10 people, but for 2 people you wouldn't go for mail merge, it's foolishness। So एक रिवर्स क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको उस वक्त लगेगा ओहो ये तो मेल मर्ज का क्वेश्चन है, एंड यू विल टिक ऑन मेल मर्ज। नो, डोंट डू दैट। सो रीड द क्वेश्चन केयरफुली, कहां आपको फंसाया जा रहा है क्वेश्चन में, बिकॉज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं और ट्रिकी क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट की जो क्लैरिटी है आपकी उसी से क्रैक किया जा सकता है। तो वो आपसे सीधा क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, घुमा के पूछ रहे हैं। फिर उन्होंने पूछा कि अनु को 50 लोगों को लेटर भेजना है, एक ही लेटर 50 लोगों को भेजना है दिल्ली में। दिल्ली में 50 लोग अलग अलग जगह रहते हैं और अनु को वो लेटर उन 50 लोगों को भेजना है। उसके पास एक डेटा सोर्स है जिसमें बाकी और सिटी के रिकॉर्ड्स भी हैं, तो व्हाट शुड शी डू? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, व्हाइल मेल मर्जिंग, व्हाइल अप्लाइंग मेल मर्ज, शी शुड फिल्टर द सिटी Delhi। She should filter the records from the data source for city Delhi। तो अनु जब मेल मर्ज अप्लाई करेगी उससे पहले वो मेल मर्ज के इंटरफेस में कहीं ना कहीं जाकर सिटी शुड बी दिल्ली फिल्टरिंग कर लेगी और उसके बाद अप्लाई करेगी, ताकि केवल दिल्ली वाले लेटर्स जनरेट हो। ठीक है, मेल मर्ज में ये भी फीचर होता है कि जरूरी नहीं कि हम सारे रिकॉर्ड अप्लाई करें, मेरे पास हो सकता है 100 रिकॉर्ड्स हो और मुझे केवल 20 लोगों को भेजना है, so I can filter those records। So Anu will do that। So this is how the questions will come, and all the questions you will be able to answer when your concept is clear। Somebody is asking that, sir, can you send this PDF also? I will definitely send this PDF to you also, don't worry। ये PDF भी आपको मिलेगी, बहुत सारे questions मिल जाएंगे, और अगर आपने वो बहुत सारे questions कर लिए वही बहुत है, that is more than enough for you। तो मेल मर्ज में जैसे मैंने आपको क्विकली बता दिया कि मेल मर्ज क्या है, मेल मर्ज का एडवांटेज क्या है। एडवांटेज एक ही है, इट इज सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। अगर आप अलग अलग लेटर्स बनाएंगे तो दिस इज अ वेरी क्विक प्रोसेस। बाकी मेल मर्ज कैसे होगा, कहां क्लिक करके जाएंगे, कौन से ऑप्शन में जाएंगे, दिस थिंग इज यू जस्ट हैव अ लुक वंस, बट इवन इफ यू डोंट रिमेंबर इट, इट्स नॉट दैट नेसेसरी। आपको फ्लो पता होना चाहिए। सबसे पहले आपका मेन लेटर बना हुआ होना। फर्स्ट स्टेप इज क्रिएट द मेन लेटर। सेकंड स्टेप इज create the data source। if it is not there, you have to create the data source। third step is insert the merge fields into the main document।
फोर्थ एंड लास्ट स्टेप इज अप्लाई मेल मर्ज। सो ये सीक्वेंस याद रखिएगा। एड्रेस लेबल भी मेल मर्ज से क्रिएट कर सकते हैं। लेबल्स एक्चुअली छोटे होते हैं साइज में, तो यहां पर एक ही पेज पर हो सकता है आप मल्टीपल लेबल्स प्रिंट कर लें। तो labels can be printed also and then these labels can be pasted on the envelope in which you are putting the merge letter. So labels पर कोई आपका specific question ऐसा नहीं आएगा, but they can ask कि एक पेज पर एक लेबल छापना सही रहेगा या एक पेज पर मल्टीपल लेबल्स। तो ऑब्वियसली एक पेज पर मल्टीपल लेबल्स will save your pages and that is the answer. That multiple labels, you should take the option for multiple labels to on one page. Next we come to electronic spreadsheets. Now electronic spreadsheets में एक है सब टोटल। Again the concept, सब टोटल आप तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब कुछ डेटा वैल्यूज रिपीटिंग हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, तो इमेजिन करिए आप एक्सेल शीट में इस तरह से हॉरिजॉन्टल बच्चे का नाम है, क्लास है, सेक्शन है, मार्क्स है, नेम क्लास मार्क्स, लेट्स से नेम क्लास मार्क्स। तो नाम आ रहे हैं सबके, क्लासेस हैं, किसी का 9 है, किसी का 10 है और मार्क्स। तो सब टोटल में सबसे पहले जरूरी है कि आपका डेटा सॉर्टेड होना चाहिए। व्हाट इज नेसेसरी? योर डेटा शुड बी सॉर्टेड। व्हाट इज सॉर्ट? अब अगर मैंने अपने डेटा को सॉर्ट किया क्लास के ऊपर, अगर मैंने क्लास के ऊपर सॉर्ट किया तो ये हो जाएगा 9th वाले सारे पहले आ जाएंगे और 10th वाले उसके बाद आएंगे। तो माई डेटा इज सॉर्टेड, क्लास 9th एंटायर चंक, बिलो दैट क्लास 10th एंटायर चंक। अब अगर मुझे क्लास 9th और 10th के एवरेज मार्क्स चाहिए तो मैं आराम से निकाल सकता हूं। अब मैं एक्सेल को या स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को बताऊंगा कि मुझे, मैंने डेटा को सेलेक्ट कर लिया, सब टोटल ऑप्शन में मुझे क्या बताना होता है ये आपको ध्यान रखना होगा। सब टोटल ऑप्शन में आपको दो चीजें बतानी होती हैं। रेंज तो आपने पूरी सेलेक्ट कर ली, डेटा सेलेक्ट कर लिया, अब सब टोटल ऑप्शन में आप क्या बताओगे कि नंबर 1 कौन सी चेंजिंग फील्ड है। चेंजिंग फील्ड मींस किस फील्ड के बेसिस पर सब टोटल होना है। तो ऑब्वियसली मेरी फील्ड कौन सी होगी? क्लास। तो 9th क्लास के सारे एक साथ टोटल हो जाएंगे और 10th क्लास के सारे एक साथ टोटल हो जाएंगे। तो सब टोटल किस फील्ड के बेसिस पे करना है, दैट इज कॉल्ड चेंजिंग फील्ड। रिमेंबर, दैट इज कॉल्ड चेंजिंग फील्ड। और अब मुझे दूसरी चीज क्या बतानी है कि क्या कैलकुलेशन परफॉर्म करना है। मुझे सम कैलकुलेट करना है, एवरेज कैलकुलेट करना है, या मिनिमम वैल्यू निकालनी है, या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, यानी टॉपर पता करना कौन है, या एवरेज मार्क्स पता करने हैं। This is the second thing I have to tell. So first thing, changing field. Second thing, what calculation to be applied, which formula has to be applied, which function has to be applied. तो ये दो चीजें जब हम देते हैं तो सब टोटल वर्क करता है। देखिए यहां पर जैसे दिया हुआ है, the field at whose change you need the subtotal, changing field, the function you need to apply, the function you need to apply, and जो भी फंक्शन अप्लाई होगा वो किस फील्ड पर होगा। अब सम फंक्शन अगर मैं एवरेज निकालूं तो एवरेज फंक्शन में यूज करूंगा। एवरेज फंक्शन किस पर अप्लाई होगा? क्लास पे अप्लाई नहीं होगा, एवरेज फंक्शन विल अप्लाई ऑन मार्क्स। तो दीज 3 आर इंपॉर्टेंट। आप सब टोटल में ये 3 चीजें याद रखिए। कौन सी चेंजिंग फील्ड है जिसके बेसिस पे सब टोटल होगा, ब्रेकअप होगा, कौन सा कैलकुलेशन आप करना चाह रहे हैं, सम, एवरेज, मैक्स, मिन, व्हाटएवर, व्हिच फंक्शन यू वांट टू यूज, और जो भी कैलकुलेशन आप करना चाह रहे हैं वो किस फील्ड पर होगा। तो जनरली वो फील्ड न्यूमेरिक ही होगी इन 90% केसेस। तो ये चीज अगर आप ध्यान में रखेंगे तीनों, तो सब टोटल पे पूछा गया कोई भी क्वेश्चन आप आंसर कर सकते हो। अगेन इसमें स्टेप्स में जाने की जरूरत नहीं है।
Just a moment. So that is the concept about subtotal. There is another concept, data consolidation. Data consolidation means just a moment. Yeah, data consolidation means अलग अलग जगह पर डेटा रखा हुआ है, उसको एक जगह पर आपको मर्ज करना है, आपको कंसोलिडेट करना है. फॉर एग्जांपल क्लास 10th के 4 सेक्शंस हैं, 10th A, 10th B, 10th C, 10th D. ओके, और सबकी अलग अलग मार्कशीट्स बनी हुई हैं. मुझको क्या करना है, इन सबको मिलाकर 10th A, B, C, D के बच्चों का एवरेज कैलकुलेट करना है. तो इस सिनेरियो में मैं डेटा कंसोलिडेशन करूंगा. इस केस में आपका एक क्वेश्चन बनता है कि यही जो सिनेरियो मैंने बताया कि रवि हैज 4 शीट्स with same format, same kind of data, but he wants to combine those sheets and perform average calculation. So what is more suitable? Data consolidation. Consolidation का मतलब होता है to bring together, and after bringing together all the values, on those values, on the set of values you can perform the calculation. तो केवल ये याद रखिए consolidation में when documents are separate and you have to bring them together, जैसे ही ऐसा सिनेरियो आएगा आपका डेटा कंसोलिडेशन काम करेगा. Then there is a very most important concept in these spreadsheets is what if analysis. ये what if analysis क्या होता है? जनरली क्या होता है कि हम हमेशा जब भविष्य के बारे में सोचते हैं कि आगे क्या होगा, आपने भी कई बार सोचा होगा व्हाट इफ दिस हैपेंस, क्या होगा अगर मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा, या अगर मेरा पेपर अच्छा हो गया तो मैं क्या करूंगा, व्हाट वेयर वुड आई थ्रो द पार्टी. ओके, या मेरा पेपर अगर अच्छा नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा. सो व्हाट इफ हमारे दिमाग में हमेशा चलता रहता है. इसी तरह अगर मेरा एक शॉप है, सपोज मेरी स्टेशनरी शॉप है, और मैं ये जानना चाह रहा हूं कि व्हाट इफ I am able to sell 50 ज्योमेट्री बॉक्सेस दिस मंथ. अगर मैंने इस महीने में 50 ज्योमेट्री बॉक्स बेच लिए तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा. तो मैं क्या कर रहा हूं, व्हाट इफ एनालिसिस कर रहा हूं. या अगर मेरी एक टीम है जो मेरे लिए काम करती है, अगर मैं ये सोचूं कि ये टीम कितने घंटे काम करे कि मेरे लिए मेरा सारा काम जल्दी हो जाए, तो मैं व्हाट इफ एनालिसिस कर रहा हूं. तो व्हाट इफ एनालिसिस के स्प्रेडशीट्स में अलग अलग टूल्स होते हैं. आपके लिए जो टूल्स करिकुलम में है उसमें से एक है सिनेरियो. सिनेरियो टूल इज देयर. अब सिनेरियो क्या होता है? सिनेरियो का लिटरल मतलब होता है अ सेट ऑफ अ काइंड ऑफ विजन, यू नो, अ सेट ऑफ वैल्यूज. तो मान लीजिए मैं क्रिकेट टीम का कैप्टन हूं. मेरे पास 5 बल्लेबाज हैं, 5 बढ़िया बल्लेबाज हैं मेरे पास, और उनका स्कोर बहुत अच्छा है. तो अब मैं अगले मैच के लिए एनालिसिस कर रहा हूं कि अगर अगले मैच में हमको 300 रन बनाने हैं तो ये 5 बल्लेबाज कितने कितने रन बना सकेंगे, कितने कितने रन इनको बनाने पड़ेंगे कि हम 300 का स्कोर बना लें. या अलग अलग सेट्स मैंने बना लिए कि चलिए 5 बल्लेबाज हर एक ने मान लीजिए हाफ सेंचुरी स्कोर करी. तो अगर हर एक ने हाफ सेंचुरी स्कोर करी तो 250 मार्क्स हो गए, 250 रन हो गए. तो सिनेरियो के केस में हमेशा याद रखिए इट इज ऑलवेज अ सेट ऑफ वैल्यूज. एक वैल्यू नहीं होगी, हमेशा अ सेट ऑफ वैल्यूज विल बी देयर. व्हेन आई अप्लाई अ सेट ऑफ वैल्यूज इन द डेटा सेट, उसके बेसिस पर कुछ आउटपुट मुझे दिखाई देगा, कैलकुलेशंस दिखाई देंगे, वो कैसे चेंज हो रहे हैं ये मैं देखना चाहता हूं. So when I apply different set of values on the data set to see different outputs, then always scenario will be used. आप सिनेरियो के साथ हमेशा एक टर्म याद रखिए, सेट ऑफ वैल्यूज. देयर विल बी मल्टीपल वैल्यूज. तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि राजू एक शॉप चलाता है जिसमें वो 100 तरह के आइटम्स बेचता है, और वो ये जानना चाह रहा है कि सारे आइटम्स की अगर अलग अलग क्वांटिटी वो बेचेगा
तो हर हफ्ते उसको कितना प्रॉफिट होगा, तो कौन सा फीचर सबसे ज्यादा सूटेबल है। तो यहाँ पर आपने देखा 100 आइटम्स, हर एक आइटम की आपको रेट लगाने पड़ेंगे, हर एक आइटम की वैल्यू, सेल्स की वैल्यू आपको चेंज करनी पड़ेगी, तो अलग अलग वैल्यूज अप्लाई करनी पड़ेंगी। तो अलग अलग वैल्यूज अप्लाई करने के लिए अलग अलग सेट्स बनाने पड़ेंगे वैल्यूज के। हर सेट को हम क्या कहेंगे, सिनेरियो। क्यों, क्योंकि इतनी सारी वैल्यूज हैं, तो अ सेट ऑफ वैल्यूज इज कॉल्ड सिनेरियो। तो जब वो पूरा सेट में अप्लाई करूंगा डेटा सेट में, तो फॉर्मूले अपना कैलकुलेशन करके कुछ आउटपुट दिखाएंगे कि अब इतनी सेल होगी, अब इतना प्रॉफिट होगा। अगर आप ये वाला सेल का सिनेरियो अप्लाई करते हो तो वो कैलकुलेट करके दिखाएगी आपको इतना प्रॉफिट होगा। तो अलग अलग सिनेरियो बना रखे हैं। सो सिनेरियोज आर अ सेट ऑफ वैल्यूज जो कि डेटा सेट पे अप्लाई होते हैं और हमें बताते हैं कि किस तरह से दूसरी वैल्यू चेंज हो रही है। तो ये इनपुट की तरह काम करते हैं। प्लीज रिमेंबर, सिनेरियोज इज अ सेट ऑफ वैल्यूज जो इनपुट की तरह काम करते हैं। जैसे ये डेटा सेट पे अप्लाई होते हैं, हमें आउटपुट चेंज होता हुआ दिखाई देता है। तो आउटपुट किस तरह से चेंज हो रहा है, ये हम एनालाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे समझने वाली चीज क्या है, मल्टीपल वैल्यूज, नॉट अ सिंगल वैल्यू। आगे बढ़ते हैं। सिनेरियो में केवल इतना काफी आपके लिए, इसमें स्टेप्स में इतना ध्यान मत दीजिएगा, एक बार देख लीजिए, दैट्स इट, बट दैट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। अब आते हैं दूसरा व्हाट इफ एनालिसिस का टूल है गोल सीक। गोल सीक ठीक उल्टा है। सिनेरियो में हमने क्या देखा था, वी आर गिविंग इनपुट एंड वी आर एनालाइजिंग द चेंज इन द आउटपुट। आई रिपीट अगेन, वी आर गिविंग इनपुट एंड एनालाइजिंग द चेंज इन द आउटपुट। गोल सीक में क्या होता है, ठीक रिवर्स होता है। मेरे पास फिक्स्ड आउटपुट ऑलरेडी है, मुझे इनपुट पता करना है क्या होगा। सी, इट्स द अदर वे अराउंड। मैं ये जानना चाहता हूं, मैं एक टीचर हूं, मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरे सभी स्टूडेंट्स को कितने, मेरे इस स्टूडेंट को कितने मार्क्स लाने चाहिए थे कि इस स्टूडेंट की डिस्टिंक्शन आ जाए। डिस्टिंक्शन मतलब 75 मार्क्स। तो मैं 75 पहले से ही लिख दूंगा। अब मैं यहां पर उसके मार्क्स चेंज कर करके देखूंगा कि उसके एवरेज परसेंटेज 75 कब हो रहा है। तो जब वो 75 हो जाएगा तो मुझे पता लग जाएगा अच्छा इतने मार्क्स उसके आने चाहिए। उसके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं और मैं जानना चाह रहा हूं कि हर सब्जेक्ट में उसके कितने मार्क्स आए कि उसका एवरेज जो है वो डिस्टिंक्शन हो जाए। तो मैं एक फिक्स्ड आउटपुट तक पहुंचने के लिए इनपुट को चेंज कर रहा हूं। सिनेरियो में क्या हो रहा था, मैं इनपुट अप्लाई कर रहा था और आउटपुट में जो चेंज हो रहा था उसे एनालाइज कर रहा था। यहां क्या है, आउटपुट चेंज नहीं हो रहा, आउटपुट ऑलरेडी नोन है, आउटपुट इज नोन, आउटपुट इज फिक्स्ड। To achieve that output, I am changing the input. And there is one value. Goal seek एक वैल्यू के साथ काम करता है। सिनेरियो में मल्टीपल वैल्यूज, गोल सीक में वन वैल्यू एट अ टाइम। तो आप एक इनपुट डालेंगे और देखेंगे 75 हुआ कि नहीं हुआ। यह गोल सीक आपको करके देगा, ये ऑटोमेटिकली करके दे देगा। आपको गोल सीक को बताना है कि मेरे स्टूडेंट के 5 मार्क्स यहाँ पर हैं और मुझे 75 चाहिए, तो क्या वैल्यू होनी चाहिए यहाँ पर, उसे कितने मार्क्स साइंस में लाने चाहिए कि उसका एवरेज 75 हो जाए। तो गोल सीक आपको बता देगा बाकी मार्क्स चेक करके कि उसके इतने होने चाहिए। सो गोल सीक विल ऑलवेज गिव यू द इनपुट टू अचीव a fixed output. Scenario will help you to apply a set of values as input and to analyze the change in the output. This is the core concept. If you have this concept clear, I bet you will be able to crack all the questions on them. वो इसी कॉन्सेप्ट के आसपास क्वेश्चन पूछेंगे आपको एक केस स्टडी दे देंगे छोटी सी 2 लाइन की, और उसको पढ़ के आपको डिसाइड करना होगा कि इसमें सिनेरियो अप्लाई होगा या गोल सीक अप्लाई होगा। तो अगर आप उस केस स्टडी में देखते हैं कि ये कह रहा है कि इनपुट अप्लाई किया जा रहा है और आउटपुट एनालाइज किया जा रहा है, तो सिनेरियो। और अगर सेट ऑफ वैल्यूज है तो सिनेरियो ही होगा। और अगर सिंगल वैल्यू है, अब देखिए सिंगल वैल्यू में भी सिनेरियो हो सकता है, इसलिए जैसे सिंगल वैल्यू होगा तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ जाएगा कि ये गोल सीक भी हो सकता है। गोल सीक होने के ज्यादा चांसेस है। तब आप देखिए हो क्या रहा है, क्या आउटपुट फिक्स है, क्या हम इनपुट को चेंज कर रहे हैं और आउटपुट चेंज नहीं हो रहा है, आउटपुट फिक्स है और उस आउटपुट को अचीव करना है, गोल सीक। तो गोल सीक में आउटपुट ऑलरेडी नोन होता है,
फिक्स्ड होता है। फिर आता है द फादर ऑफ ऑल दिस, सॉल्वर। नाउ सॉल्वर इज समथिंग विच स्टूडेंट्स फाइंड मोस्ट difficult to understand. I have talked to other students and teachers also. Solver is something they find very intimidating. Solver में बड़ा confusion लगता है। Confusion में आपको बताऊं क्यों लगता है, जब आप उसको practically करने जाते हैं तब वो confusing लगता है। जब तक concept आपका clear नहीं होगा, you will not be able to understand the practical part. तो solver की मदद से हम क्या करते हैं? Solver is an advanced form of goal seek. Always remember, solver is sophisticated form, advanced form of goal seek. गोल सीक में क्या हो रहा है, हम एक इनपुट दे रहे हैं और एक आउटपुट अचीव करने के लिए एक इनपुट दे रहे हैं। वो इनपुट तब तक जाता रहता है जब तक वो आउटपुट अचीव ना हो जाए। तो अगर मेरे स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट में मार्क्स हैं और साइंस में वो फेल हो गया है और मैं जानना चाहता हूं कि साइंस में वो कितने नंबर ले आता कि उसके 75 हो जाते एवरेज, तो गोल सीक मुझे बता देगा कि साइंस में उसके कितने नंबर आने चाहिए थे कि 75 हो जाता है एवरेज। तो इनपुट मुझे पता लग गया, हम यहाँ इनपुट पता कर रहे हैं, ठीक है। और गोल सीक में बाकी सब फिक्स है। सॉल्वर में भी यही होता है। सॉल्वर में हमें आउटपुट पता होता है, आउटपुट हम डिसाइड करते हैं। बट सॉल्वर यूज कहां पर होता है? सॉल्वर बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में यूज होता है। मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बताता हूं। सपोज मेरी क्रिकेट टीम है, मैं क्रिकेट टीम का कैप्टन हूं और मैं चाहता हूं कि मेरी टीम 300 का स्कोर बनाए, लेकिन हर प्लेयर कम से कम 25 रन तो बनाए ही बनाए। अब देखिए मैंने शर्त भी लगा दी। मेरा रिक्वायरमेंट क्या है? आई वॉन्ट ओवरऑल स्कोर ऑफ 300। ओके, तो माई क्वेश्चन इज कि हर खिलाड़ी कितना बनाए कि स्कोर 300 हो जाए। बट एक शर्त भी है, कम से कम हर खिलाड़ी 25 रन तो बनाए ही बनाए। तो जब सॉल्वर इस चीज को अप्लाई करेगा अपने लॉजिक के थ्रू, तो वो ये ध्यान रखेगा कि हर खिलाड़ी को कम से कम 25 तो रन एलोकेट करेगा ही करेगा। और फिर वो ये भी देखेगा कि इतने रन तो दे ही दे सबको, इतना एलोकेट सबको कर दे टारगेट कि स्कोर 300 बन जाए। दिस इज वन एग्जाम्पल। अनदर एग्जाम्पल इज आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, आप चाहते हो कि मेरे 95% आए, मेरे मार्क्स ओवरऑल 95% होने चाहिए, बट मुझे हर सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन भी चाहिए। तो मैं हर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लाऊं एटलीस्ट कि मुझे हर सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन भी मिले और मेरा ओवरऑल स्कोर 95 हो जाए। तो इस केस में सॉल्वर आपकी मदद करेगा, गोल सीक आपकी मदद नहीं कर पाएगा। सिनेरियो को तो अलग ही हटा दीजिए। सो जब भी आपको कुछ ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, मुझे मिनिमम खर्चा कितना करना है या मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होना चाहिए, मेरे मैक्सिमम मार्क्स कितने होने चाहिए या मेरा मैक्सिमम क्रिकेट स्कोर कितना होना चाहिए, अगर मैक्सिमम मिनिमम ये ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू आपको चाहिए तो आप सॉल्वर यूज करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, सॉल्वर के साथ हमेशा शर्त भी जुड़ी होती है, लेकिन साथ में ये भी हो, मुझे मैक्सिमम मार्क्स 95 चाहिए लेकिन साथ में मुझे डिस्टिंक्शन भी चाहिए हर सब्जेक्ट में। मुझे मैक्सिमम स्कोर क्रिकेट टीम का 300 चाहिए लेकिन मेरा हर खिलाड़ी 25 रन तो कम से कम बनाए ही बनाए। तो दिस इज व्हाट कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट मतलब शर्त। तो when there is a target involved, an optimization value involved, maximum, minimum, at least value, a fixed value is there, and I have some niyam, some shart also, some condition also, some constraint also कि ये भी satisfy हो जाए। Constraint एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। Then this is taken care of by solver। तब इतने complicated चीज को solver ही कर पाएगा, गोल सीक और सिनेरियो नहीं कर पाएंगे। तो आई रिपीट अगेन, सिनेरियो में मल्टीपल सेट ऑफ वैल्यूज अप्लाइड एज इनपुट एंड वी एनालाइज द चेंज इन आउटपुट। Set of values applied as input in the data set and we analyze the change in output. Goal seek में output is known, output is fixed. I want to achieve the input to reach that output. Goal seek मुझे वो input बता देता है
जिससे मेरा डिजायर्ड आउटपुट आएगा, आउटपुट चेंज नहीं होता। इन सॉल्वर आई वांट टू नो द इनपुट टू अचीव अ नोन आउटपुट। ये देखिए गोल सी की तरह साउंड कर रहा है। आई वांट टू अचीव एंड ऑप्टिमाइज अ वेरी गुड इनपुट टू अचीव एन फिक्स्ड आउटपुट, बट देयर आर सर्टेन कंस्ट्रेंट्स आल्सो। कुछ कंडीशंस भी अप्लाई होंगी, जैसे ऐड में लिखा होता है ना कंडीशन अप्लाई। आपको ये चीज बहुत सेल लगी हुई है, ठीक है, 80% छूट, और नीचे लिखा होता है कंडीशन अप्लाई। सिमिलरली मैं चाहता हूं कि मैं ये गोल अचीव कर लूं, तो मैं क्या वैल्यूज इनपुट करूंगा, बट मेरी कुछ शर्तें भी हैं। So somebody is asking, in case of multiple conditions, what if the conditions are conflicting? If the conditions are conflicting, now that you have to decide with your common sense and requirement. If your conditions are conflicting, solver is not responsible. It will give you incorrect optimization. So input is given by, remember we learned in computer fundamentals, garbage in, garbage out. If my input is incorrect, computer will give me incorrect output. Fine. So you have to be very careful what constraints, what conditions you are going to apply. तो जैसे मैंने कहा कि हर खिलाड़ी कम से कम 25 रन तो बनाए और 300 रन मुझको चाहिए टोटल, तो ये ठीक है, ये कंफ्लिक्टिंग नहीं है। बट मैं कहूं कि हर खिलाड़ी कम से कम 25 रन बनाए, लेकिन जो ओपनर्स हैं दोनों वो 50 रन बनाए, तो 25 रन भी बनाएंगे, 50 रन भी बनाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मुझे उन दो खिलाड़ियों के लिए कंस्ट्रेंट अलग सेट करनी पड़ेगी और बाकी 9 खिलाड़ियों के लिए कंस्ट्रेंट अलग सेट करनी पड़ेगी। तो द conflicting, if there is a conflict in conditions, that has to be resolved by the user. Solver will not do it automatically, and solver will not warn you, it will not help you. That you have to take care. Is that clear? That's a very good question. If the conditions are conflicting, so the answer is incorrect input, incorrect output. So I'm just clearing your concept actually, on the basis of which your questions will be based. जैसे ये एक्सरसाइज आपने देखी, यहाँ पे एक बर्गर सेलर है, वो बर्गर किसी पर्टिकुलर कॉस्ट पे बेच रहा है और वो कुछ ना कुछ कमा लेता है शाम को। तो अब वो चाह रहा है कि वो बर्गर की कॉस्ट मिनिमम कितनी रखे कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो इस तरह के सिनेरियोज में, और वो बर्गर की कॉस्ट कुछ फिक्स भी रखना चाह रहा है। हाँ, एक बर्गर, कोई भी बर्गर 65 रुपए से ऊपर वो नहीं बेचना चाह रहा है। अभी वो बर्गर 55 रुपए का, 55 रुपीज का बेच रहा है। वो चाहता है कि उसकी कितनी सेल और हो कि वो 48,000 का प्रॉफिट कमा ले। लेकिन बर्गर, अब देखिए कंस्ट्रेंट क्या है, लेकिन बर्गर जो है 65 रुपीज से महंगा नहीं होना चाहिए। तो वो कॉस्ट भी कंट्रोल रखना चाहता है और प्रॉफिट भी कमाना चाहता है। So he wants to maximize the profit by controlling the price of the burger. So here, who will help? What concept will help? And you know the answer, solver. Referencing and linking sheet. Now, references में आपको ध्यान देना होगा hyperlinks पर. In hyperlinks, there are two types of links, absolute and relative. कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ये बहुत आसान है, इसको ऐसे समझिए कि आप अपने स्कूल को जाते हो बस से, ठीक है? तो सब अपने अपने घर से स्कूल को जाते हैं। आपके घर से स्कूल का रास्ता यूनिक है, दूसरे के घर से डिफरेंट है। फाइन, तो दैट इज योर एब्सोल्यूट पाथ। अगर कोई आपसे ये पूछे कि मुझे आपके स्कूल पहुंचना है, मैं क्या करूं, तो आप उससे यही पूछोगे ना कि आप कहां से आओगे, आप किधर से आओगे। लेकिन अगर आप उससे ये कहो कि आप पहले मेरे घर आओ और मेरे घर से मैं आपको स्कूल का रास्ता बता देता हूं, वहां से आप स्कूल चले जाना, क्योंकि मुझे वही रास्ता पता है। तो इट डजंट साउंड ओके, इट डजंट साउंड सेंसिकल। तो बंदा पहले आपके घर आएगा, फिर आप उससे बताओगे हाँ अब यहाँ से आप ऐसे जाइए दाएं बाएं और ये स्कूल पहुंच जाएंगे आप। दिस इज योर एब्सोल्यूट पाथ फ्रॉम योर हाउस
टू योर स्कूल। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा आपके स्कूल के और आपके घर के रास्ते में एक जगह एक पॉइंट ऐसा होगा जो सारे लोगों के लिए, सारी बसेस के लिए कॉमन होगा। चलिए मान लेते हैं उसको हम कहते हैं बड़ा चौराहा। बड़े चौराहे से आपके स्कूल तक सारा पाथ सभी बसों के लिए कॉमन है, यानी सभी बसें बड़े चौराहे से होकर मुड़ती हैं तब आपके स्कूल पहुंचती हैं। तो बड़े चौराहे से स्कूल तक का जो पाथ है वो क्या हो गया, आपका कॉमन पाथ है। तो अगर आप किसी को ये बोलो कि आप बड़े चौराहे पहुंच जाओ और बड़े चौराहे से आप ऐसे ऐसे करोगे तो आप स्कूल पहुंच जाओगे, तो आप उसको क्या बता रहे हो, आप उसको रिलेटिव पाथ बता रहे हो, आप उसको अपने घर से नहीं बता रहे हो। So from your house to your school is absolute path, and from बड़ा चौराहा to your school is your relative path. यही कंप्यूटर में होता है। कंप्यूटर में क्या होता है, ड्राइव्स हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव। अगर यहां से आप कोई पाथ शुरू करेंगे अपनी फाइल तक, ये पूरा एब्सोल्यूट पाथ है जो आपके कंप्यूटर पर है। मैंने अपने कंप्यूटर की डी ड्राइव में कहीं पर एक फाइल रखी हुई है, तो उसका पाथ डी ड्राइव से शुरू हो रहा है। ठीक है, अब वो फाइल अगर मैं आपको दे दूं, आप उसको कहीं भी रख सकते हो, आप उसको अपना ई ड्राइव में रख लोगे, हो सकता है आप उसको पेन ड्राइव में रखो। पेन ड्राइव में रखने पर तो अलग अलग कंप्यूटर में लगाने पर उसका पाथ अलग अलग हो जाएगा। तो अब यहां पर अगर मैंने आपको एक फाइल दी और उसमें कुछ हाइपरलिंक लगे हुए हैं, उन पे क्लिक करने पर कोई और फाइलें खुलने वाली हैं, मैं वो फाइलें भी आपको दूंगा। अब अगर ये फाइलें अलग अलग एब्सोल्यूट पाथ पर हैं, तो जब आप अपने कंप्यूटर पर उसको कॉपी करोगे तो कोई गारंटी थोड़ी है कि आप उसको, मैंने तो डी ड्राइव पे रखी थी, आप हो सकता है ई ड्राइव पे रख लो या एफ ड्राइव पे रख लो या सी डी ड्राइव में लगा दो। तो क्या होगा, आपके कंप्यूटर पर वो पाथ, एब्सोल्यूट पाथ चेंज हो गया। मेरे कंप्यूटर पर वो डी से शुरू हो रहा था, आपके कंप्यूटर पर वो ई से शुरू हो रहा है। और आप उसको कहाँ कॉपी करोगे, किस फोल्डर में कॉपी करोगे, आई कैन नॉट फोर्स यू, यू कैन कीप इट एनीवेयर। अब क्या प्रॉब्लम होगी, जब आप हाइपरलिंक पे क्लिक करोगे, अगर मैंने एब्सोल्यूट हाइपरलिंक दिया हुआ है डी ड्राइव से, तो उसको डी तो मिलेगा ही नहीं, आपने उसको ई में किसी और फोल्डर में डाल रखा है। इट विल बी एब्सोल्यूट, यू नो दैट हाइपरलिंक विल गो फॉर अ टॉस, इट विल नॉट वर्क, एक मैसेज आएगा फाइल नॉट फाउंड। बट अगर मैंने वो वाली फाइल जिसमें सारे हाइपरलिंक लगे हुए हैं, उस फाइल के नीचे के पाथ में कहीं पर अपनी लिंक्ड फाइलें मैंने कॉपी कर रखी हैं, तो ये सब कॉमन पाथ में आ गई। बड़े चौराहे के इस तरफ आपका बड़ा चौराहा है, स्कूल के बीच में आप कहीं भी हो, आप स्कूल पहुंच जाओगे। सिमिलरली हियर आपने डी ड्राइव की किसी भी फोल्डर में आपने फाइल रखी है, डज नॉट मैटर, जो फाइलें आपने लिंक कर रखी हैं उनको आपने इस वाली फाइल के पाथ में ही आगे डाउन द पाथ कहीं पर किसी फोल्डर में कॉपी किया हुआ है और लिंक किया हुआ है, और आप यूजर को ये पूरा फोल्डर का सेट आप देते हैं। आपने क्या किया हुआ है, अब आपने रिलेटिव हाइपरलिंकिंग लगाई हुई है, यानी मेरी जो मेन फाइल है उसके आगे से चेक करो। आपने रिलेटिव हाइपरलिंकिंग में क्या दिया कि मेरी फाइल जिसमें हाइपरलिंक्स हैं उस पाथ के पीछे से मत चेक करो, उस पाथ के आगे से चेक करो। ये है रिलेटिव पाथ। अब आप किसी को भी ये पूरा फोल्डर जिसमें आपकी मेन फाइल है किसी को भी देंगे, वो कहीं भी कॉपी करेगा, ड्राइव से मतलब ही नहीं है, वो डी ड्राइव ई ड्राइव चेक ही नहीं करेगा। अब जब आपकी फाइल खुलेगी, आप हाइपरलिंक पे जैसे ही क्लिक करेगा दूसरा बंदा, रिलेटिव हाइपरलिंक की वजह से वो इस वाली फाइल के पाथ से आगे चेक करना शुरू करेगा और 100% उसको आपका लिंक्ड फाइल मिल जाएगी। दैट इज बिकॉज ऑफ रिलेटिव हाइपरलिंकिंग। So that's the core concept on which the question may come. आपको हो सकता है दो पाथ दिखाई जाए ऐसे, इस तरह से देखिए यहां पर दिख रहे हैं आपको दो पाथ, और हो सकता है आपसे पूछा जाए कि इनमें से रिलेटिव पाथ कौन सा है, तो आप दोनों में से कॉमन पाथ ढूंढ लीजिए, जो कॉमन पाथ होगा वो आपका रिलेटिव पाथ होगा। तो ये चीज क्लियर है। नाउ आई जस्ट स्टॉप द शेयर। Now at this point, let me know whatever I have told you so far, did you find it useful? Were you able to understand? आपको समझ में आया थोड़ा बहुत, या आपको आपका कुछ हेल्प हुई क्या? You can give me a quick feedback. आपने जो पहले क्लास में पढ़ रखा था या जल्दी जल्दी कहीं पे पढ़ा हुआ था, टाइम नहीं था, 2 दिन में चैप्टर फिनिश हो गया, it was all in a rush. I think whatever I have spoken to you in these 45 minutes, कुछ थोड़ा बहुत आपका कोहरा छटा। So what you have to think is, you have to think of the concept, focus on the concept, what and why.
द एडवांटेज, व्हाट इज कंसेप्ट क्या है, मेल मर्ज क्या है, सब टोटल क्या है, व्हाट इफ एनालिसिस क्या है, सॉल्वर क्या है, एसक्यूएल क्या है, व्हाई मींस क्यों, इसका एडवांटेज क्या है, इसका फायदा क्या है, हाउ मींस कैसे करेंगे, हाउ पार्ट इज 2%. फाइन. सो when you keep this thing in mind, what why का आप पार्ट प्रिपेयर कर लीजिए, मेरे दिए हुए क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर लीजिए, उसमें व्हाट और व्हाई सारा दिया हुआ है, और आप आराम से रात को सोइए, अगले दिन पेपर दीजिए. ओके, सो जस्ट रिलैक्स एंड नो नीड टू वरी. I gave you time of 1 hour. It is 1 hour I have been speaking. Would you mind if I take some more time? If anybody likes to stay for more time, I am speaking, and if you want to leave, it's up to you, but I am speaking. I'll just quickly finish up other topics also. I'm not actually teaching, I'm just guiding you. तो अभी हम यहाँ पर आ गए, मर्ज एंड कंपेयर. ये एक और कॉन्सेप्ट है, मर्ज एंड कंपेयर. अभी आपने डेटा कंसोलिडेशन सुना था. डेटा कंसोलिडेशन का मतलब है अलग अलग डेटा सेट्स हैं, उन सबको साथ में लाए और उनकी वैल्यूज के ऊपर आपने कोई कॉमन कैलकुलेशन कर लिया, सम एवरेज, दैट इज कंसोलिडेशन. मर्ज एंड कंपेयर का मतलब हुआ कि आपने 4-5 एक ही डॉक्यूमेंट की 4-5 कॉपी अलग अलग सबको बांट रखी है. ठीक है, आपने अपने स्कूल की आपने अपने स्कूल का कुछ डेटा बनाया हुआ है और उसकी कॉपी सबके पास है और सबने अपने अपने चेंजेस कर रखे हैं. अब आपको नहीं पता कि मेरा डेटा कौन सा था और उसने क्या चेंज किया. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेक इन 5 डॉक्यूमेंट्स. तो आपने क्या किया, 5 डॉक्यूमेंट्स, आपने अपना डॉक्यूमेंट खोला और उन 5 डॉक्यूमेंट्स की कॉपी को अपनी कॉपी के साथ मर्ज कर दिया. जैसे आप मर्ज करेंगे, जो मर्ज फीचर है, ये मेल मर्ज नहीं है, दिस इज डिफरेंट मर्ज. इट इज मर्जिंग द सेम कॉपी ऑफ द डेटा. तो आपने अपना ओरिजिनल डेटा खोला, आपके दोस्तों ने जो चेंजेस कर रखे थे 5, आपने उनसे लिए और इसमें मर्ज मार दिए. जैसे ये मर्ज होना शुरू होंगे, ये आपको एक स्क्रीन में दिखा देगा अलग अलग मार्क करके कि उनके चेंजेस क्या थे, आपके चेंजेस क्या थे. उनकी फाइलों में जो आपके कॉमन चेंजेस थे, जो आपके में भी थे, उनको वो इंटैक्ट रखेगा, उनको डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, ओवरराइट नहीं करेगा. जो नए चेंजेस हुए थे उनको वो इंसर्ट कर देगा. सिंपल, कॉमन सेंस से सोचिए. आपके 5 लोगों ने कुछ चेंजेस किए, वो रहने चाहिए ना, और आपका डेटा भी नहीं जाना चाहिए. तो यही मर्ज एंड कंपेयर करता है. वो कंपेयर करेगा डॉक्यूमेंट्स को, देखेगा कॉमन क्या है, वो कॉमन रख लेगा सबसे पहले. उसके बाद देखेगा सब में यूनिक क्या है, उस यूनिक को अलग रख लेगा. कोई भी डेटा डिस्ट्रॉय नहीं होगा, कोई भी डेटा ओवरराइट नहीं होगा. आप ये नहीं कह सकेंगे कि मैंने एक जो रिकॉर्ड डाला था वो तो दिख ही नहीं रहा. तो इट रिटेन्स ऑल द डेटा, what all was there original as well as the changes. Got this? तो अगर इस तरह का सिनेरियो आता है, आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है कि रवि ने 5 सेल्समैन हैं, उसके 5 सेल्समैन सेम फॉर्मेट में रिपोर्टिंग करते हैं और उसको 5 डॉक्यूमेंट्स का सेल्स का एक उसको एवरेज सेल कैलकुलेट करनी है. तो यहां पर डेटा कंसोलिडेशन होगा. गॉट इट? क्योंकि उसे 5 सेल की टोटल सेल कैलकुलेट करनी है. लेकिन अगर क्वेश्चन ये है कि किसी ने 5 डॉक्यूमेंट्स को दिया हुआ है, 5 डॉक्यूमेंट्स लोगों ने चेंज कर दिए हैं और उन डॉक्यूमेंट्स को पता करना है, कंपेयर करना है कि क्या चेंजेस हुए हैं, तब हम करेंगे मर्ज एंड कंपेयर. कई बार क्या होता है, जब हम किसी को डॉक्यूमेंट चेंज करने के लिए देते हैं तो हम उसमें एक फीचर होता है ट्रैक चेंजेस. ट्रैक चेंजेस वाला ऑप्शन ऑन कर देते हैं ताकि जितने भी चेंजेस वो करता है वो हमें पता लग जाए. उसका कलर चेंज हो जाता है तो मुझे पता लग जाएगा मेरा क्या था और उसने क्या चेंजेस किए थे. लेकिन अगर मैंने किसी को डॉक्यूमेंट दे दिया बिना ट्रैक चेंजेस किए, मैं भूल गया और उसने सारे चेंज कर डाले, अब मेरे लिए बड़ा कंफ्यूजिंग है कि मेरा क्या था और उसने क्या चेंज किए. तब यहां पर काम आएगा मर्ज एंड कंपेयर. मैं अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसके चेंज डॉक्यूमेंट से मर्ज कर दूंगा, तो मेरे चेंज तो रहेंगे, साथ में उसके भी आ जाएंगे. सो दिस इज व्हाट योर मर्ज एंड कंपेयर विल डू. रजिस्टर्ड डेटा सोर्स क्या होता है? रजिस्टर का मतलब होता है रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर या रजिस्टर्ड डेटा सोर्स
वो होता है जिसके बारे में ऑपरेटिंग सिस्टम को पता हो कि वो आपकी मशीन पर इंस्टॉल्ड है, दैट इज कॉल्ड रजिस्टर्ड। तो अगर आप रजिस्टर्ड डेटा सोर्स की बात कर रहे हैं, जनरली ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जितने भी होते हैं, जैसे आपका ओपन ऑफिस है, इनके साथ काम करता है। तो ओपन ऑफिस को पता है, अगर आपने कोई डेटाबेस बनाया है तो ओपन ऑफिस को पता है कि हाँ इस तरह का डेटाबेस बना है, और इस तरह का डेटाबेस रजिस्टर्ड सोर्स जो है वो अलग अलग फाइलों से एक्सेस हो सकता है। अगर आपने एक फाइल खोल के कुछ बनाया है, तो जब आप उसी सॉफ्टवेयर में दूसरी फाइल खोलेंगे तो ये वाली बनाई हुई चीज भी वहां अवेलेबल रहेगी, क्योंकि ये रजिस्टर्ड है। सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट याद रखिए, रजिस्टर्ड डेटा सोर्स मींस एप्लीकेशन नोज अबाउट इट, application is aware about the data source, then it is called registered data source, that's it। इसका कोई प्रैक्टिकल ऐसा वो नहीं है, आपको थ्योरेटिकली ये कॉन्सेप्ट बस ये लाइन याद रखनी है, that registered data source is something about which the application is aware, application knows about it। आजकल ऑनलाइन का जमाना है, वी शेयर द डेटा। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक शीट बनाऊंगा, उसको एक कॉमन जगह पे डाल दूंगा, गूगल शीट्स में या कहीं पर भी, गूगल ड्राइव पे, और मैं एक्सेस दे दूंगा कई लोगों को कि आप लोग उस पर वर्क करो। सपोज माय टीम इज देयर हु इज वर्किंग ऑन द सेम प्रोजेक्ट, तो मैंने एक फाइल बना दी, सब उसी में चेंजेस कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड शेयर्ड एनवायरनमेंट। देयर इज ओनली वन कॉपी ऑफ डेटा एंड एवरीबडी इज चेंजिंग इट, सो देन इट इज कॉल्ड शेयर्ड डेटा एक्सेस। एंड जब मैं शेयर डेटा एक्सेस करता हूं तो आई हैव टू बी वेरी क्लियर, आई शुड नो व्हाट चेंजेस आर डन बाय हुम। तो उसके लिए मुझे ट्रैक चेंजेस फीचर ऑन करना पड़ता है। जब भी आप अपने सॉफ्टवेयर में ट्रैक चेंजेस फीचर ऑन करते हैं तो आपका जो चेंजेस हैं शेयर डॉक्यूमेंट में, वो मार्क हो जाते हैं कि किस यूजर ने क्या चेंज किया था। बाद में आप उसको रिव्यू भी कर सकते हैं, यू कैन रिव्यू द चेंजेस and you can decide what changes should be kept and what changes should be rejected, that is the concept। so पहला क्वेश्चन कि ट्रैक चेंजेस की जरूरत किस सिनेरियो में पड़ती है। ट्रैक चेंजेस की जरूरत पड़ती है जब हम डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं, when a single document is shared with multiple people, then track changes must be on। और अगर ट्रैक चेंजेस ऑन नहीं होगा तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आपको कभी पता नहीं लगेगा किसने क्या चेंज किया। तो ट्रैक चेंजेस मस्ट बी ऑन, एंड लेटर यू कैन डिसाइड व्हाट टू कीप एंड व्हाट नॉट टू कीप, दैट इज कॉल्ड रिव्यू द चेंजेस। ठीक है, सो these are the concept basically I am talking about। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि रीना के पास एक फाइल है और वो फाइल को एक गूगल ड्राइव पे रख के वो अपनी सारी टीम से शेयर करना चाहती है, तो व्हाट शुड बी द प्री रिक्विजिट, उससे पहले उसको क्या करना चाहिए। तो करेक्ट आंसर है शी मस्ट स्विच ऑन द ट्रैक चेंजेस ऑप्शन, शी मस्ट स्विच ऑन द ट्रैक चेंजेस ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि शेयर डॉक्यूमेंट में कई यूजर्स ने अपने अपने चेंजेस कर दिए हैं, तो क्या ये सारे, अब ऑप्शन होगा कि क्या सही है, क्या ये सारे चेंजेस अप्लाई करना जरूरी है। तो इस केस में क्या होगा, द करेक्ट आंसर इज यू कैन डिसाइड वेदर यू कैन अप्लाई, यू कैन एक्सेप्ट द चेंजेस और रिजेक्ट द चेंजेस। So are you getting me, the concepts? And if you have the pen and paper you can note them down also। इस सेशन की रिकॉर्डिंग में हम आपको शेयर कर लेंगे, तो जब रिकॉर्डिंग आप बाद में प्ले करके भी देख सकते हो, कहीं पर आपको अगर रिवाइज करना है तो। macros, I think macros is another challenge for the students, they are finding it difficult। oh my god, macro programming is there, I'm not a programmer, how do you prepare programming in one day? need not to worry। मैक्रो में सबसे पहली चीज आप ये समझिए, ऑटोमेशन। मैक्रो क्या होता है, ऑटोमेटेड टास्क। एक ऐसा काम जो मैं रोज एक्सेल, मैं अपने ऑफिस में रोज जाता हूं और एक काम मैं रोज एक्सेल शीट में बार बार करता हूं, हमेशा करना होता है मुझे, वो डेटा मेंटेन करना होता है।
तो मैं वो रोज काम कर रहा हूँ, रूटीन टास्क है, तो उस रूटीन टास्क के लिए मैंने क्या किया, एक मैक्रो बना ली, उसमें जितने कैलकुलेशंस मैं करता हूँ उसके लिए मैंने एक मैक्रो तैयार करके रख ली। अब मैं गया, मैंने अपना स्प्रेडशीट खोला और 2 कीज मैंने दबाई और वो मैक्रो रन हुई, उसने सट से सारे कैलकुलेशंस कर दिए। सो इट इज इजी फॉर मी, नो? सो मैक्रो इज यूज्ड फॉर टास्क ऑटोमेशन, रूटीन टास्क को ऑटोमेट करते हैं मैक्रो की मदद से। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनेगा कि रवि जो है वो रोज ऑफिस में जाके 100 यूजर्स का डेटा मेंटेन करता है और रोज वो सेम कैलकुलेशंस कैलकुलेट करता है। He wants to save his time. What is the best suited approach? अब उसमें ऑप्शंस दिए होंगे, सॉल्वर, उसमें ऑप्शन दिया होगा ऑटोमेटिक फॉर्मूला, उसमें ऑप्शन दिया हो सकता है शेयर द शीट so that his other friends can help him. No, the correct answer is option D, macro. He should create a macro for the routine task. तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन आप हिट कर सकते हो। मैक्रो में आप हमेशा याद रखो ऑटोमेशन, ऑटोमेटेड टास्क, रूटीन टास्क को वो ऑटोमेट करता है। एक्सेल में आपको अब क्या होता है, मैक्रो रिकॉर्ड करना होता है। मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए अब सबसे पहले क्या बताना होता है मैक्रो को, वो टास्क पूरा करके दिखाना होता है। व्हाट इज अ मैक्रो? इट इज अ सेट ऑफ स्टेप्स। तो पहले मैंने आपको मैक्रो का कॉन्सेप्ट बताया, मैक्रो हेल्प्स इन ऑटोमेटिंग रूटीन टास्क्स। व्हाट इज अ मैक्रो? मैक्रो इज अ सेट ऑफ स्टेप्स टू परफॉर्म अ टास्क। तो जब आप मैक्रो बनाते हैं तो आपके लिए क्या जरूरी है, आपको एक बार वो सारे स्टेप्स करके दिखाने होंगे मैक्रो को। दैट इज कॉल्ड मैक्रो रिकॉर्डिंग। So you can create the macro by, first of all, by recording. What do you record? You record all the steps. तो रवि जो रूटीन टास्क करता है वो मैक्रो रिकॉर्डिंग ऑन करेगा और उसके बाद अपने उस पूरे रूटीन टास्क के सारे स्टेप्स को फ्रॉम स्टेप 1 टू स्टेप लास्ट एक एक करके करेगा पूरा प्रॉपर्ली। और चूंकि रिकॉर्डिंग हो रही है तो वो सारे स्टेप्स मैक्रो रिकॉर्ड कर लेगी और अब वो उसको सेव कर देगा, एक नाम देके, यूनिक नेम देके, और एक कीबोर्ड शॉर्टकट भी उसके साथ लगा सकते हैं। अब जब भी वो मैक्रो को रन करेगा नाम से या वो कीबोर्ड शॉर्टकट दबा के, तो वो मैक्रो रन हो जाएगी। मैक्रो क्या रन हो जाएगी, उसके अंदर जो स्टेप्स रिकॉर्ड हुए थे वो सारे रन हो जाएंगे और वो काम हो जाएगा, सिंपल। सो दिस इज व्हाट अ मैक्रो इज। इस तरह से मैक्रो काम करती है। मैक्रो इज अ सेट ऑफ स्टेप्स रिकॉर्डेड इन इट। Macro is identified by a unique name. Macro can be run by a keyboard combination. So these are certain things which you have to keep in mind. Somebody is saying that it means it works like autofill. You can compare, autofill is a very tiny small thing. Yes, it resembles to autofill, but autofill is a very simple thing. It's just a word or something. But here we are talking about complicated routine tasks. Calculations and everything, we record it. It's like a program, complete program. आप कहीं पर भी क्लिक करोगे वो सब कुछ रिकॉर्ड होगा, go to this cell, go to that cell, calculate this formula. So it's a complicated thing. जब आप मैक्रो रिकॉर्ड करके आप उसको मैक्रो एडिटर में खोल के देखो कभी, it is a complicated complex program which is there. So yes, you can say it's almost like, it looks like autofill, but it's actually not autofill. It's something different. It is automation, yes. Fine. तो ये तो हो गया मैक्रो के लिए। नाउ वी कम टू अदर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स विद मैक्रो। मैक्रो दो तरह से यूज होती है। एक तो मैंने जैसे आपको बताया कि आपने कीबोर्ड शॉर्टकट प्रेस किया और मैक्रो रन हो गई। दिस काइंड ऑफ मैक्रो इज कॉल्ड प्रोसीजर। द मैक्रोज विच आर रन आर कॉल्ड प्रोसीजर्स। प्लीज रिमेंबर दैट। मैक्रोज विच आर एग्जीक्यूटेड, जो मैक्रो हम रिकॉर्ड करके बनाते हैं, हम प्रोग्रामिंग करके भी बना सकते हैं, बट जनरली मैक्रो हमने रिकॉर्ड कर ली, उस मैक्रो को हम रन करेंगे अगर, तो वो इस तरह की मैक्रो कहलाएगी प्रोसीजर। लेकिन आपने कई बार देखा होगा जब आप स्प्रेडशीट में काम करते हैं, आपने इक्वल टू टाइप किया, किसी फंक्शन को यूज करने के लिए आपने इक्वल टू टाइप किया, इक्वल टू टाइप करने के बाद आपने उस फंक्शन का नाम टाइप किया, सपोज AVERAGE, और जैसे ही आपने ब्रैकेट लगाया आपको हेल्प भी आ जाती है कि ब्रैकेट में आपको क्या क्या डालना है। रिमेंबर, दैट कम्स ऑटोमेटिकली। ये कब होता है, जब हम फंक्शंस यूज कर रहे होते हैं।
तो मैक्रोज हम फंक्शंस की तरह, हम मैक्रो में फंक्शंस भी बना सकते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास, मैं अपनी कंपनी का कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करता हूं, जिसमें मैं सबके फॉर एग्जांपल मैं 50 एम्प्लॉइज का 50 सेल्समैन का मैं हर हफ्ते का कितना कमीशन हुआ ये कैलकुलेट करना होता है मुझे। नाउ इट्स अ कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला, तो व्हाट आई डू इज आई कैन पुट दिस फॉर्मूला इन द फॉर्म ऑफ मैक्रो और मैं उसको सेव कर दूंगा। लेकिन ये फॉर्मूला कोई भी की प्रेस करने से रन नहीं होगा। ये कैसे रन होगा? ये मेरे पास से कहीं पे डेटा सेट होगा, कहीं पे डेटा होगा, सबकी सेल्स होगी, उसके नीचे जाके मैं कहीं पर इक्वल टू प्रेस करूंगा और उस मैक्रो का नाम टाइप करूंगा और उसमें कुछ इनपुट्स दूंगा। ब्रैकेट के अंदर इनपुट देते हैं ना, जैसे सम फंक्शन में हम वैल्यूज देते हैं, एवरेज फंक्शन में वैल्यूज देते हैं। तो जैसे मैं इक्वल टू लगा के, सपोज मेरी मैक्रो का नाम है कैलकुलेट कमीशंस, तो मैं कहूंगा इक्वल टू कैलकुलेट कमीशंस ब्रैकेट ओपन, और अगर मैं कुछ वैल्यूज उसमें डाल रहा हूं तो वो जाएगा, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो मैक्रोज कैन बी इंप्लीमेंटेड एज फंक्शंस आल्सो। प्लीज रिमेंबर, macros which are run, which are executed by keyboard shortcut or by clicking run button, they are called procedures. The macros which are used as functions are called function macros. इनका भी यूनिक नेम होता है। और फंक्शन मैक्रोज अपना काम करने के लिए जो इनपुट लेते हैं वो ब्रैकेट के बीच में लेते हैं हमेशा। जैसा आपका सम फंक्शन है, वो ब्रैकेट के बीच में रेंज ऑफ वैल्यूज लेता है या अलग अलग वैल्यूज कॉमा लगा के लेता है। दैट इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। आप आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं फंक्शन में, तो फंक्शंस टेक आर्ग्यूमेंट्स आल्सो। सब प्रोसीजर्स आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहे हैं, फंक्शंस टेक आर्ग्यूमेंट्स आल्सो। जरूरी नहीं कि हर फंक्शन आर्ग्यूमेंट ले, बट जनरली फंक्शंस नीड आर्ग्यूमेंट्स। देखिए यहां पर जैसे एक फंक्शन है डीए, तो ये दो आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, बेसिक सैलरी एंड डीए परसेंटेज। बेसिक सैलरी और डीए परसेंटेज ये लेगा तब कैलकुलेशन करेगा। सेकंड थिंग, जैसे आप इक्वल टू फंक्शन का नाम कैलकुलेट कमीशन ब्रैकेट लगा दिए, फिर जैसे आप एंटर प्रेस करते हैं तो वहां पर फंक्शन की जगह कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाती है। तो वो क्यों होता है? बिकॉज फंक्शंस ऑलवेज रिटर्न सम वैल्यू, वैल्यू ऑफ कैलकुलेशन, द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन। So functions always perform some calculation and they return the result of the calculation. Please remember that. Procedures do not return any value. Procedures just do a task, that's it. But functions return values after calculation. तो जब भी आपको कैलकुलेशन करना है आप फंक्शन बनाइए, और जब भी आपको कुछ रूटीन टास्क करना है तो आप प्रोसीजर वाली मैक्रो बनाइए, या सिंपली कहें तो मैक्रो बनाइए। तो दीज आर द टू कॉन्सेप्ट्स। आई होप दैट बेसिक डिफरेंस इज क्लियर। फंक्शन का मतलब ये है कि वो कुछ कैलकुलेशन करेगा, अदरवाइज यू गो फॉर अ सिंपल मैक्रो, दैट इज कॉल्ड प्रोसीजर। तो इसमें इससे ज्यादा आपको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका यही रहेगा, नथिंग एल्स यू नीड। बाकी डेटाबेस मैनेजमेंट में फॉरेन की, कैंडिडेट की, ये आपको पता ही है, ये बहुत बेसिक है। फॉरेन की क्या होती है? फॉरेन की वो की फील्ड होती है जो कि अपनी मास्टर टेबल में जो आपकी पेरेंट टेबल है उससे उसकी मैचिंग वैल्यूज इसमें होती हैं, दैट इज फॉरेन की। आपको पता है कैंडिडेट की क्या होती है? अगर आप एक टेबल बना रहे हैं और आपको ये डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सी फील्ड को मैं प्राइमरी की बनाऊं, और बहुत सारी फील्ड्स हैं, आपको लग रहा है कि ये 5 फील्ड्स जो हैं ये प्राइमरी की बन सकती हैं, लेकिन 5 में से आप कोई 1 या 2 या 3 सेलेक्ट करोगे, 5 आप सेलेक्ट नहीं करने वाले हो। तो वो सारी फील्ड्स जो क्वालिफाई करती हैं प्राइमरी की बनने के लिए वो कहलाएंगी कैंडिडेट की। जैसे इलेक्शन में 5 कैंडिडेट खड़े होते हैं लेकिन एक को जीत हासिल होती है, तो ये 5 कैंडिडेट थे जिसमें से एक सेलेक्ट होता है। सिमिलरली आपकी टेबल में आपको लग रहा है 5 कीज ऐसी हैं जो प्राइमरी की बन सकती हैं, ये 5 कहलाएंगी कैंडिडेट की। इन कैंडिडेट की में से जिसको आप सेलेक्ट कर लेंगे वो हो गई प्राइमरी की।
अगर आपने एक फील्ड सेलेक्ट करी तो प्राइमरी की हो गई। कई कई सिनेरियो में क्या होता है, एक फील्ड काफी नहीं होती है, तो आपको दो फील्ड का कॉम्बिनेशन मिला के यूनिक बनाना पड़ता है। तो आपको लगा 5 फील्ड में से 2 फील्ड ऐसी हैं जिनको अगर मैं ले लूं मिलाकर तो ये प्राइमरी की का काम करेंगी। तो अब ये 2 फील्ड मिला के एक प्राइमरी की बन रही है, तो ये हो गया कॉम्पोजिट। कॉम्पोजिट का मतलब होता है कंबाइंड। तो जब एक से ज्यादा फील्ड्स मिलकर प्राइमरी की का काम करती हैं तब इन फील्ड्स को कहा जाता है कॉम्पोजिट प्राइमरी की। कंपोजिट मींस कॉम्बिनेशन। अगर एक ही फील्ड है तो सिंपली प्राइमरी की हो गया, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोजिट एंड ऑल। इफ मोर देन वन फील्ड आर बिहेविंग लाइक प्राइमरी की टुगेदर, दे ऑल आर कॉल्ड कंपोजिट प्राइमरी की। अब 5 कैंडिडेट खड़े हुए थे जिसमें से आपने 2 को सेलेक्ट किया प्राइमरी के लिए, बाकी 3 रह गए। जो बाकी 3 रह गए वो कहलाते हैं ऑल्टरनेट की। सी हाउ सिंपल इट इज। Many fields, all of them are candidate keys. You select only one, that is primary key. But if you select more than one, combined for primary key, they are composite primary key. जो बचे वो alternate key. Alternate का मतलब होता है बचे हुए, alternatives, बाकी। तो ये तीनों इस तरह से रिलेटेड है। तो इस पर अगर क्वेश्चन आता है तो अब आप आंसर कर सकते हो कि रवि के पास एक 100 फील्ड्स की टेबल है जिसमें से 6 फील्ड उसको ऐसी लग रही है जिनको प्राइमरी की बना सकता है, उसमें से 2 फील्ड्स को उसने प्राइमरी की तरफ चूज कर लिया। तो इनमें से ये जो 2 फील्ड्स है ये क्या हुई, फॉरेन की हुई, कैंडिडेट की हुई, ऑल्टरनेट हुई या कॉम्पोजिट हुई? तो ये दोनों फील्ड मिलकर प्राइमरी की बना रही हैं, आंसर इज कॉम्पोजिट। या जो बच गई उनको क्या कहेंगे, ऑल्टरनेट। जो सारी की सारी कैंडिडेट, जो सारी की सारी फील्ड्स लग रही थी प्राइमरी की बनाई जा सकती हैं, कैंडिडेट कीज। फाइन। सो दिस इज हाउ फॉरेन की क्या होती है। फॉरेन प्राइमरी की में आप यूनिक वैल्यूज रखते हैं। आपका डेफिनेशन ही है कि प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन द टेबल। So it cannot have duplicate values, it cannot have null values. But foreign key should have a matching value with the primary key. But foreign key can be null also. Maybe there is no value available, so foreign key can have duplicate values also. Because suppose आपके पास एक आइटम है शॉप में जिसका कोड है 1। अब वो आइटम आप केवल एक ही आदमी को तो बेचेंगे नहीं, आप सारे लोगों को बेचेंगे जो शॉप में आएंगे। तो जो आपकी सेल्स टेबल होगी उसमें रोज उस आइटम की एंट्री, वो आइटम रोज बिकेगा तो रोज उसकी एंट्री होगी। तो जब रोज उसकी एंट्री होगी तो वैल्यूज रिपीट होंगी। तो रिपीटिंग वैल्यूज, डुप्लीकेट वैल्यूज फॉरेन की में रखी जा सकती हैं। बट प्राइमरी की के हिसाब से आपकी शॉप में उस आइटम का एक ही डिटेल है, तो उस आइटम की एक यूनिक प्राइमरी की है। जैसे आपका एडमिशन नंबर है स्कूल में, आपका एडमिशन नंबर किसी और स्टूडेंट का नहीं है, लेकिन आप जितनी बार एग्जाम देते हो आपका एडमिशन नंबर रिपीट होता है। तो मार्क्स टेबल में आपका एडमिशन नंबर क्या है, फॉरेन की है, लेकिन स्टूडेंट मास्टर में आपका एडमिशन नंबर क्या है, प्राइमरी की। सो दिस इज व्हाट योर प्राइमरी की, फॉरेन की, ऑल्टरनेट की, कैंडिडेट की, कंपोजिट की कॉन्सेप्ट। विजर्ड वगैरह के चक्कर में मत पड़िए, विजर्ड से टेबल कैसे बनेगी, डोंट गो फॉर दैट। इसमें ऐसा कोई खास क्वेश्चन नहीं बन रहा है। Referential integrity. Referential integrity is again sounds confusing, but actually it is very simple. Let me tell you how. It relates with your primary key and foreign key concept. एक पहला सिनेरियो लेते हैं, आपके पास एक स्टेशनरी शॉप है, या एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, मैं एक टीचर हूं और मेरे पास आप सभी स्टूडेंट्स का डेटा है, ठीक है, आपका नाम, आपके मार्क्स। तो पहला क्वेश्चन ये है कि मैं मार्क्स स्टूडेंट मास्टर टेबल में आपके सब डिटेल पड़े हुए हैं, आपका एडमिशन नंबर है, आपका नाम है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, और मैं अपनी मार्क्स टेबल में एडमिशन नंबर के अगेंस्ट मार्क्स भर रहा हूं। तो क्या मैं किसी ऐसे स्टूडेंट को मार्क्स दे सकता हूं जो स्कूल में है ही नहीं? इम्पॉसिबल। यानी क्या मैं ऐसा एडमिशन नंबर उसमें फिल करूंगा अपनी टेबल में जो स्टूडेंट मास्टर टेबल में एग्जिस्ट ही नहीं करता? ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, इलॉजिकल। तो जब ये चेक किया जाता है, दैट इज कॉल्ड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो फॉरेन की में जब मैं कोई ऐसी वैल्यू डालूंगा जो मैचिंग प्राइमरी की वैल्यूज में से किसी में नहीं मैच हो रही,
तब वो क्या कहलाएगा? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं हो रही है। तो फर्स्ट थिंग इज whatever value I am putting in my foreign key, that value must exist in the parent table. तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी से ये इंश्योर होता है that correct data is being stored in the database. इनकरेक्ट डेटा स्टोर नहीं हो रहा है। दूसरी चीज, एक स्टूडेंट ने 10 एग्जाम दे रखे हैं, हर जगह उसका एडमिशन नंबर सेम होगा, 10 जगह पर एडमिशन नंबर उसका सपोज है 1, तो उसका एडमिशन नंबर 1 सब जगह होगा 1 1 1 1 1 1 उन 10 एग्जाम्स के लिए। सपोज किसी वजह से उस स्टूडेंट का एडमिशन नंबर चेंज होके 5 हो गया, उसने एक एप्लीकेशन लगाई या कुछ हुआ, सिस्टम में उसका एप्लीकेशन नंबर हो गया 5, एडमिशन नंबर उसका हो गया 5, तो स्टूडेंट मास्टर टेबल में जहां उसका एडमिशन नंबर 1 था वहां पर 5 कर दिया जाएगा, तो बाकी टेबल्स जो उससे कनेक्टेड है, जहां 1 1 1 और जगह पर है, वहां पर भी ऑटोमेटिकली 5 5 5 हो जाना चाहिए, इजंट इट? वरना तो मिसमैच हो जाएगा। वरना कल को हम उस स्टूडेंट का अगर रिजल्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे तो कंप्यूटर बताएगा कि इस स्टूडेंट का तो कोई रिजल्ट नहीं मिला, वो कहेगा अरे मैंने तो 10 एग्जाम दे रखे हैं, क्यों नहीं मिला? वो 5 और 1 मैच ही नहीं हो रहा है, तो उसका रिजल्ट निकल के नहीं आ रहा। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर उस स्टूडेंट का मास्टर टेबल में 5 चेंज हुआ है, पूरे डेटाबेस में जिन जिन टेबल में उसका एडमिशन नंबर 1 1 1 1 अपीयर हो रहा था, सब जगह रिफ्लेक्ट होके 5 हो जाना चाहिए। दैट इज कॉल्ड अपडेट कास्केड। कास्केडिंग का मतलब है फ्लो, कास्केड मींस फ्लो। तो अगर मैंने यहां पर कोई अपडेट किया मास्टर टेबल में, तो दैट अपडेट शुड फ्लो डाउन टू ऑल द चाइल्ड टेबल्स आल्सो, it should be reflected in child tables also. That is called update cascade. Got this? अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट टीसी लेकर उस स्कूल को छोड़ के चला गया, तो एक नियम होता है कि हमें उसका डिटेल्स जो है कम से कम 2 साल तक रखने चाहिए। हो सकता है उसे टीसी की दूसरी कॉपी की जरूरत पड़े, या कल को कोई ऑडिट हो तो चेक करना पड़े, तो हमें सारे डेटा मेंटेन रखना पड़ेगा। बट 2 साल बाद हमें अब उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड नहीं चाहिए, तो हमने क्या किया, मेन टेबल में से उस स्टूडेंट का पूरा रिकॉर्ड डिलीट कर दिया। तो अब बाकी टेबल्स में से भी उसके रिकॉर्ड डिलीट हो जाने चाहिए ऑटोमेटिकली। दिस इज कॉल्ड डिलीट कास्केड। तो एनी चेंजेस मेड इन द पेरेंट टेबल आर रिफ्लेक्टेड इन द चाइल्ड टेबल्स आल्सो। दिस इज कॉल्ड अपडेट कास्केड, और ये ऑब्वियस होना चाहिए। इसी तरह अगर कोई रिकॉर्ड डिलीट हुआ है मेन टेबल में, तो बाकी जितनी रिलेटेड टेबल्स हैं वो रिकॉर्ड उन टेबल्स में से भी उस चीज के रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाने चाहिए सिस्टम में से। तो ये कहलाता है डिलीट कास्केड। यही वजह है कि हम ये सारे चेंजेस करने से पहले पूरे डेटाबेस का बैकअप लेते हैं। एक्चुअल कॉपी में हम चेंजेस नहीं करते हैं, ओरिजिनल कॉपी का हम बैकअप ले लेते हैं, फिर हम वो चेंजेस करते हैं। मान लीजिए गलत चेंजेस हो गए, मान लीजिए हमने स्टूडेंट का डेटा 2 साल बाद भी डिलीट किया, और कोई ऐसी कंट्रोवर्सी हो गई कि 5 साल बाद कोई पूछता हुआ आया कि आप दिखाइए, वो रिकॉर्ड ओपन करके दिखाइए, तो हम तो कहेंगे हमने डिलीट कर दिया, अब क्या होगा? ऐसा नहीं होता है। तब हमें अपना बैकअप रिस्टोर करना पड़ेगा और उसमें से निकलेगा। गॉट दिस? दैट इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। तो आपने रेफरेंशियल इंटीग्रिटी समझा। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के 3 एस्पेक्ट होते हैं। पहला, मैं कोई ऐसी वैल्यू एंटर ना करूं जिसका मैचिंग रिकॉर्ड पेरेंट टेबल में ना होना चाहिए। दैट इज फर्स्ट condition. Second is any changes made in master table or parent table should be reflected down to other related tables. Update cascade. Third is any record, any detail or information deleted in master table or parent table, that delete should happen in the related tables for matching records also. Delete cascade. Cascade का मतलब आप याद रखिए, फ्लो डाउन। जैसे झरना गिरता है ना, हम कहते हैं ना वाटरफॉल इज कास्केडिंग डाउन, तो यहाँ पर भी है कि मेन टेबल में हमने चेंजेस किए तो वो इफेक्ट जो है वो कास्केड होके बाकी टेबल्स पर भी आ रहा है। दैट्स द मीनिंग ऑफ कास्केड। ये दिमाग में रखिए, आपको बिल्कुल क्लियर रहेगा कॉन्सेप्ट। रिलेशनशिप्स कितने तरह की होती हैं, ये तो आपने स्कूल में देखा होगा। आप अगर लाइब्रेरी में जाते हैं और ये शर्त है कि आप एक किताब इशू करोगे, जब तक आप वो किताब नहीं लौटाते तब तक दूसरी किताब आपको नहीं मिलेगी। तो ये क्या हो गई, 1 to 1। One student can issue only 1 book at a time.
1-to-1 रिलेशनशिप। बट अगर हम एक और सिनेरियो देखें, वन टीचर कैन टीच मैनी क्लासेस, 1-to-many, ठीक है। इससे ऊपर जाए अगर हम स्कूल के लेवल पे, मैनी टीचर्स आर टीचिंग मैनी स्टूडेंट्स, कई टीचर मिलके एक स्टूडेंट को नहीं पढ़ाते हैं, वो बेचारा भाग जाएगा, ओ माय गॉड 5 टीचर एक साथ पढ़ाने आ गए। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। देयर इज अ स्टाफ ऑफ टीचर्स एंड देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, सो मैनी टीचर्स टीचिंग मैनी स्टूडेंट्स, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। गॉट दिस? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशनशिप्स, या तो 1-to-many होती है, या 1-to-1 होती है, many-to-many होती है। आपको एग्जाम्पल भी दिए हैं बुक में, ये पीडीएफ आपको दे दूंगा मैं, तो आपको आसानी रहेगी। रिलेशनशिप कैसे सेटअप करते हैं, इसमें अगेन हाउ में मत जाइए, इस पर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आएगा। अभी तक देखिए जितने कॉन्सेप्ट हमने यूज करे हैं, कहीं पर भी सॉफ्टवेयर का कोई दखल नहीं है। एमएस ऑफिस में भी ऐसे ही होगा, ओपन ऑफिस में भी वही कॉन्सेप्ट काम करेगा। ये क्वेरी विजर्ड वाले सब छोड़ दीजिए, विजर्ड इतना इंपॉर्टेंट नहीं। क्वेरी, अगर हम क्वेरी की बात करें, क्वेरी मींस आस्किंग क्वेश्चन। तो टेबल में बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, टेबल में हो सकता है 10,000 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स हों। क्वेरी मीट्स अ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट। मैं जानना चाहता हूं क्लास 9 में वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको डिस्टिंक्शन मिली है साइंस में। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उसके अंदर, तो अब वो डेटाबेस देखेगा सबसे पहले। अब मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, वो कौन से स्टूडेंट हैं जिनको साइंस में डिस्टिंक्शन मिली है। तो यहां पर क्या हो गया, डिस्प्ले क्या करना है मुझको, वो कौन से स्टूडेंट्स हैं, यानी स्टूडेंट्स के नाम। तो यहां पर क्या आ जाएगा, डिस्प्ले स्टूडेंट नेम। एसक्यूएल की भाषा में हम कहेंगे सेलेक्ट स्टूडेंट नेम। तो ये तो डेटाबेस में से सेलेक्ट होगा स्टूडेंट्स के नाम। कंडीशन क्या हो गई, मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 75, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 75, ये एक कंडीशन हो गई। फिर मैंने पूछा था साइंस में, सारे सब्जेक्ट में नहीं। तो दूसरी कंडीशन हो गई, एंड सब्जेक्ट इज इक्वल टू साइंस। तो डिस्प्ले स्टूडेंट नेम, सेलेक्ट स्टूडेंट नेम वेयर, जहां पर पहली कंडीशन क्या है, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 75, एंड मतलब दूसरी कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए, एंड सब्जेक्ट इज इक्वल टू साइंस। तो अब जब मैं क्वेरी करूंगा तो साइंस, वो पूरे रिकॉर्ड्स में से सबसे पहले देखेगा साइंस वाले कौन से रिकॉर्ड्स हैं, ओके ये वाले हैं। अब इसमें ये साइंस वाले रिकॉर्ड्स में से ग्रेटर देन 75 कौन से हैं, ये वाले हैं, ओके। और उस सेट के जितने स्टूडेंट के नाम है निकाल के डिस्प्ले कर लेगा। दिस इज हाउ द क्वेरी वर्क्स। आपको थोड़ा विजुअलाइज करना पड़ेगा कि क्वेरी काम कैसे कर रही है। और आप भी, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो मैन्युअली आप भी यही करोगे। अगर ये काम रजिस्टर्स में होगा तो आप सबसे पहले उन स्टूडेंट्स को टिक करोगे जो साइंस के। जब साइंस के स्टूडेंट टिक हो जाएंगे तब आप उन स्टूडेंट्स को डबल टिक करोगे जिनको 75 मिला है। उसका डबल टिक वाले स्टूडेंट्स के नाम एक पर्ची पे आप नोट करोगे और उस बंदे को दे दोगे जिसने क्वेश्चन पूछा था। तो अगर आप कंप्यूटर नहीं होते तो ये काम आप मैन्युअली ऐसे ही करते जैसे सॉफ्टवेयर कर रहा है। बस फर्क क्या है, कंप्यूटर्स फास्ट होते हैं, सॉफ्टवेयर उस काम को 1 सेकंड में कर देगा, आपको उस काम में हो सकता है 2 घंटे लगते। फर्क सिर्फ इतना है। आप उसको मैन्युअली कर रहे हैं तो हो सकता है आपसे कोई स्टूडेंट छूट जाता, आपसे एरर होता, लेकिन कंप्यूटर में एरर नहीं होगा बिकॉज वो सही चेक करेगा। दैट इज द ओनली डिफरेंस, एक्यूरेसी एंड स्पीड। बाकी लॉजिक सेम है। तो जो कंडीशन आप देते हैं क्वेरी के साथ वो कहलाती है क्राइटेरिया। जब आप क्वेरी डिजाइन कर रहे होते हैं तो नीचे कहीं पर एक सेक्शन होता है क्राइटेरिया। तो जिस फील्ड के लिए क्राइटेरिया देना है उस फील्ड के ठीक नीचे आप क्राइटेरिया देते हैं। तो साइंस फील्ड के नीचे आप सब्जेक्ट फील्ड के नीचे क्राइटेरिया देंगे साइंस। आप मार्क्स फील्ड के नीचे क्राइटेरिया देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 75। तो इस तरह से क्वेरी डिजाइन होती है। कई बार ऐसा होता है, मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि जिन स्टूडेंट्स के नाम एस से शुरू हो रहे हैं उनके नाम मुझको चाहिए।
तो क्या होगा, अब ये तो ढूंढना बड़ा मुश्किल है, मैनुअली तो एस वाले सब टिक करने पड़ेंगे। सॉफ्टवेयर को हम कैसे बताएंगे, पहला लेटर क्या है, एस, बाकी कोई भी हो, सुमन, सुमित्रा, सुमित, तो क्या हो रहा है, एस के आगे अगर मैंने स्टार लगा दिया, स्टार का मतलब कंप्यूटर ले लेता है इस केस में एनी लेटर और एनी नंबर ऑफ लेटर्स। तो एस स्टार का मतलब हुआ एस से शुरू होने वाले सारे नाम। तो ये कहलाता है वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड मतलब इट इज रिप्लेस्ड बाय इट्स स्पेशल मीनिंग। इसी तरह क्वेश्चन मार्क होता है, क्वेश्चन मार्क का मतलब एग्जैक्टली वन लेटर। तो अगर मैं कहता हूं मुझे उन स्टूडेंट्स के नाम चाहिए जो एस से शुरू हो रहे हो लेकिन उनके नाम में केवल 5 लेटर हो, जैसे सुमन, सुमित, सोम अगर है तो सोम डिलीट हो जाएगा, सोम नहीं सेलेक्ट होगा। तो एग्जैक्टली 5 नाम वाले वो बच्चे चाहिए, 5 लेटर के नाम वाले वो बच्चे चाहिए जिनके नाम एस से शुरू हो रहे हैं। तब मैं क्या करूंगा, एस फॉलोड बाय 4 क्वेश्चन मार्क्स, एस क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, केवल 4। तो एग्जैक्टली 4 लेटर्स वाले उन स्टूडेंट्स को उठाएगा जिनका पहला लेटर एस है। सो दिस इज हाउ वाइल्ड कार्ड्स वर्क। वाइल्ड कार्ड्स हमेशा लाइक ऑपरेटर के साथ काम करते हैं। जिस फील्ड के नीचे आप दे दोगे, स्टूडेंट नेम के नीचे आप दे दोगे लाइक और सिंगल कोट्स में एस स्टार, लाइक एस स्टार मतलब एस से शुरू होने वाले नाम, लाइक एस क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, एस से शुरू होने वाले वो नाम जिनमें एग्जैक्टली 5 लेटर्स हों। तो याद रखिए क्वेश्चन मार्क का मतलब एग्जैक्ट 1 लेटर, तो जितने लेटर चाहिए उतने क्वेश्चन मार्क लगाने होंगे। स्टार इज अ गुड शॉर्टकट। स्टार तब है जब आपको पता है कि कोई भी लेटर हो आगे और कितने भी हो, दैट इज स्टार। तो हमने टेबल्स देख ली, टेबल्स एक्चुअली स्टोर द डेटा, क्वेरीज एक्चुअली फेच द डेटा फ्रॉम द टेबल्स एंड शो द रिजल्ट टू द यूजर। तो क्वेरी पाइपलाइन की तरह होती है। क्वेरी में हम कंडीशन लगाते हैं, हम क्वेरी में बताते हैं कौन सी फील्ड्स चाहिए, हम क्वेरी में बताते हैं क्या क्राइटेरिया होगा, क्या फिल्टरिंग लगेगी, उसके बेसिस पे डेटा टेबल से निकाल के दिखा दिया जाता है। एक और कंपोनेंट होता है फॉर्म। फॉर्म की मदद से हम टेबल में डेटा एंट्री कर सकते हैं, टेबल में जो ऑलरेडी डेटा स्टोर्ड है उसको देख सकते हैं 1 बाय 1, और डिलीट भी कर सकते हैं। हम डेटा चेंज कर सकते हैं, डेटा डिलीट कर सकते हैं, नया डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। These 3 works can be done by the form। इस पर MCQ बन सकता है कि फॉर्म से आप क्या क्या कर सकते हो। तो फॉर्म से आप टेबल बना नहीं सकते, फॉर्म से आप इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कर सकते हो, ठीक है। फॉर्म की मदद से आप कैलकुलेशंस भी दिखा सकते हो। मान लीजिए आपके पास एक फील्ड है क्वांटिटी और एक फील्ड है रेट। क्वांटिटी और रेट को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने सेल वैल्यू आ जाएगी। सेल वैल्यू टेबल में नहीं है, हम कैलकुलेटेड वैल्यूज कभी टेबल में नहीं रखते। वी whatever you can calculate never store in the table because you can always perform a calculation, ठीक है। टेबल में हम सिर्फ डेटा रखते हैं, कैलकुलेशन इज एक्चुअली द रिजल्ट ऑफ डेटा, तो वो चीज हम टेबल में नहीं करेंगे। तो फॉर्म के अंदर हम ऐसे कंट्रोल्स भी लगा सकते हैं कि ऐसा टेक्स्ट बॉक्स मैंने लगा दिया जो मुझे क्वांटिटी और हर रिकॉर्ड की क्वांटिटी और रेट का मल्टीप्लिकेशन भी दिखा रहा है। So forms can show the data from the table and forms can also show the calculations on the data। तो ऐसा टेक्स्ट बॉक्स जो टेबल में से आया हुआ डेटा दिखा रहा है, ऐसे टेक्स्ट बॉक्स को हम कहेंगे डेटा कंट्रोल। कंट्रोल मींस दैट GUI कंपोनेंट, टेक्स्ट बॉक्स हो सकता है, लिस्ट हो सकती है, रेडियो बटन हो सकता है, चेक बॉक्स हो सकता है, वो जो कुछ भी है, अगर वो आपको टेबल का डेटा दिखा रहा है तो ऐसे कंट्रोल को कहेंगे, ऐसे GUI कंपोनेंट को कहेंगे डेटा कंट्रोल। लेकिन एक ऐसा टेक्स्ट बॉक्स है जो टेबल में जो डेटा मौजूद है उसका कैलकुलेशन दिखा रहा है, उस कैलकुलेशन का रिजल्ट दिखा रहा है, ऐसे कंट्रोल को डेटा कंट्रोल नहीं कहेंगे। वो डेटा नहीं दिखा रहा है, वो डेटा का कैलकुलेशन दिखा रहा है, तो ऐसे कंट्रोल को हम कहेंगे कैलकुलेटेड कंट्रोल। फाइन, कैलकुलेटेड कंट्रोल। So data control shows the actual data in the table as it is।
Calculated control shows the calculation done on the data in the table. That's the basic difference. इस पर क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू में कि डेटा कंट्रोल और कैलकुलेटेड कंट्रोल में क्या फर्क होता है. तो रवि wants to see the sale value of all the items in this form, but the sale value is not stored in the table. What should he do in the form? What kind of control should he take? Answer is calculated control. He should take a calculated control and put a formula in it. Quantity multiplied by rate. तो जैसे ही वो फॉर्म खुल के वाला रिकॉर्ड आएगा, उस रिकॉर्ड का क्वांटिटी रेट मल्टीप्लाई होकर उसका रिजल्ट वहां दिखेगा कैलकुलेटेड कंट्रोल में. दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट. सो डेटा कंट्रोल्स एंड कैलकुलेटेड कंट्रोल्स में ये डिफरेंस है. डेटा कंट्रोल में आप जो भी देखिए चेंजेस करेंगे वो टेबल में जाके सेव हो जाएगा नहीं, क्योंकि वो टेबल से ही आ रहा है. तो अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स दिखाई दे रहे हैं 75, उसको मैंने 85 कर दिया तो टेबल में भी 85 हो जाएगा. बट कैलकुलेटेड कंट्रोल को मैं चेंज नहीं कर सकता, करूंगा भी तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टेबल में वो फील्ड्स है ही नहीं. तो कैलकुलेटेड कंट्रोल नॉर्मली रीड ओनली होते हैं, लेकिन अगर यूजर ने उसमें कुछ टाइप भी कर दिया तो वो टेबल में नहीं जाएगा. डेटा कंट्रोल में जो भी चेंजेस हुए हैं दे आर रिफ्लेक्टेड बैक इन द टेबल. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. चेंजेस मेड इन डेटा कंट्रोल ओनली आर सेव्ड इन द टेबल. चेंजेस मेड इन कैलकुलेटेड कंट्रोल्स, कॉमन सेंस कहती है कि कैलकुलेटेड कंट्रोल्स में चेंज किए गए हैं वो टेबल में सेव नहीं होंगे. सो आई होप दिस ऑल इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू. वेल, थैंक्स वंस अगेन ऑल ऑफ यू. टेक केयर, डू वेल.